ऑल म्युनिसिपैलिटी, नॉट वन म्युनिसिपैलिटी। फगवाड़ा वाली जजमेंट नहीं मुझे चाहिए जो ये इनकी कैपिटल लोकल एरिया बैंक की है, वो ITAT की जजमेंट है। Suppose it is a rural agriculture land, then we can enter into a joint. Then there no problem. Then there is no problem. I think that we cannot enter into this. Take the benefit of 45(5)(a). 45(5)(a) मिलेगा ही नहीं आपको, आप 45(5)(a) में जा ही नहीं सकते। लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट हो तभी मिलना है ना। वो तो है ही है, 45(5)(a) नहीं आएगा तो क्या हुआ? अदर देन 45(5)(a) में तो जा सकते हैं। वो बताता हूँ मैं ना, आज बताऊंगा कि 45(5)(a) नहीं होगा तो क्या होगा। Okay, good afternoon, members. I welcome all of you on virtual CP meeting of Jalandhar branch of NIRC of ICI. We are there. Good afternoon, everyone. I welcome all the members on today's webinar. We are very fortunate that CA Girish Ahuja ji is with us to guide us about capital gain. Earlier, we were able to listen Ahuja sir mostly on budget seminars, but now we are lucky that we can hear you on different topics. And capital gain is one of your favorite topics, sir. We thank Ahuja sir for accepting our request and giving us your time. Let's listen to our chairman, Piyush Kansal ji first. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. First of all, I would like to welcome CA Dr. Girish Ahuja ji for accepting our invitation for Jalandhar branch. मैंने सर के साथ जब बात की, मैंने कहा सर मुझे ABC कैपिटल गेन की समझ नहीं है। कहते जी ABC नहीं तो A to Z समझाऊंगा पूरा। तो उन्होंने A to Z का आज टोटल रखा हुआ है। It would be A to Z of capital gain. I welcome and recognize you, sir, for your valuable knowledge sharing with members of Jalandhar branch. आपके लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगा सर, केवल 2 लाइनों में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा, हमारे बीच में संजय अग्रवाल जी हैं, पास सेंट्रल काउंसिल मेंबर। हमारे बीच में अविनाश जी हैं, NIRC मेंबर। पास चेयरमैन जलंधर ब्रांच के यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, जो मैं देख सकता हूँ, अश्विनी जिंदल जी, RS कालड़ा जी, दीपक बजाज जी। पास NIRC मेंबर, पास NIRC सेक्रेटरी राजीव बांसल जी भी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। एंड आई वेलकम द एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर CA उमेश दादा, CA गुरलीन सिंह सानी जी ट्रेजरर, CA सोनिया वाइस चेयरपर्सन, CA शशि भूषण सेक्रेटरी, CA Vinay Jindal ji or CA Sumit ji. I welcome all the executive committee members, and at the top of all, I welcome all the members who have joined this webinar. Even though it is a lunch time, still we can see a good number of members joining it, and in the coming time it will be getting more and more members in. सर मैं आपके लिए सिर्फ 2 लाइनें कहूंगा। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। सर आप नॉलेज के समुंदर हैं और हम वो छोटे छोटे दरिया हैं जो आपके थ्रू आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। ओवर टू शशि जी। थैंक यू सर। Thank you, Piyush ji. Now I would request CA Gurleen Singh Sani to introduce our guest speaker, CA Girish Ahuja. Thank you, Shashi ji. Good afternoon, everyone. I welcome all the members and worthy speaker of the day, Dr. Girish Ahuja ji. I have been honored that I have been given a chance to introduce Dr. Girish Ahuja ji. He is an avid speaker and avid academic who teaches us the most complex things of direct taxes in a very easy and digestible manner. Our revered taxation guru, Dr. Girish Ahuja ji, needs no introduction, but as we have to follow the protocol, we have to do it. He did his graduation and post-graduation from SRCC, Sri Ram College of Commerce, Delhi. And he was a position holder. Got his PhD, Faculty of Management Studies, University of Delhi. Teaching direct taxes to the students at various levels. He is a fellow of Chartered Accountants of India and was placed in the merit list of both the intermediate and the final examinations of the institute.
He is also on the board of directors of many companies and has vast and rich experience in the field of finance and taxation. I believe every year our year starts with the budget, and we always discuss the budget with Dr. Girish Ahuja ji. And I have already told he explains all the things in a very easy and digestible manner. So कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बात हो डायरेक्ट टैक्सेस की, गिरीश ऊजा जी की एक्सप्लेनेशन जब भी आती है, मुझे नहीं लगा उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम रहती है. सो फॉर यू सर, इन द एंड आई वुड लाइक टू शेयर 2 लाइंस. दरिया है हम, अपना हुनर मालूम है. दरिया है हम, अपना हुनर मालूम है. गुजरेंगे जिधर से रास्ता हो जाएगा. थैंक यू सो मच गिरीश जी फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड आई बिलीव कि आज कैपिटल गेन्स के बारे आपसे सुनने के बाद इसके भी हमारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. ओवर टू शशि. Thank you, sir. And now I would request Girish sir to kindly start. Good afternoon to everyone. Sorry, the program was earlier at 11:30, but later on shifted to 2:30. You may be you must be skipping your lunch, or you must be having your lunch still. It doesn't matter. Let me first. The chairman of the Jalandhar branch, CA Payush Bansal ji, vice chairperson CA Sonia ji, the treasurer of secretary of the branch CA Shashi Bhushan ji, Gurleen Singh, of course, Sani ji, treasurer of the branch, CA Umesh Danda ji, the past chairman, of course, CA Sunil ji, and CA Vinay Jindal ji, and of course certain past chairmen sitting in front of me, of course Kalra ji, Ashwini Jindal ji, Ashwini Ramdev ji nazar nahi aa rahe par honge idhar hi kahin, and the other dignitaries sitting in front of me, of course past Central Council member Sanjay Agarwal ji from Delhi, of course, and Avinash Gupta happened to be my student also, the NRC member, and other dignitaries who are watching this program. Ladies and gentlemen, आपने तो 2 लाइनों में खत्म कर दी, लेकिन मुझे तो A to Z करना है, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा. अब वो जरा ध्यान से सुनिए. थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं थोड़ा थियोरेटिकल भी हो गया और प्रैक्टिकल दोनों करूंगा, but it will take little time to understand. We start with first section 45(1). Section 45(1) says, save as otherwise, वो मैं नहीं बोलूंगा, बस इधर ना, there any profit or gain arising from the transfer of any capital asset effected during the previous year shall be chargeable to income tax under the head income from capital gain in the previous year in which transfer took place. However, there are certain capital gain which are exempt. ये मैंने change किया है, ऊपर लिखा था save otherwise provide. However, there are certain capital gain which was exempt under section 54 to 54 GB. क्या कहता है 45(1)? The capital gain, profit or gain arising from the transfer of capital asset. Mr. Kalra was talking to me whether it is a capital. So, sir, it is a capital asset, and if you transfer that capital asset and there is any profit or gain. Now, this transfer has taken place. The capital gain will arise in the previous year in which the transfer took place. The transfer took place. लेकिन ये correct नहीं है. There are certain exceptions to the rule that the capital gain arises in the previous year in which transfer took place. There are so many exceptions. One is 45(1)(a), section 41(5) capital 1(a), where if the property is destroyed, damage or destruction is there of a property, there is a transfer in the year of damage or destruction, but capital gain does not arise in the year of damage or destruction. It will arise in the previous year in which the money or the asset is received from the insurance company. So this is the first exception, 45(1)(a), where the capital gain does not arise in the year in which transfer took place. Second exception is 45(2). We will be doing that, where a capital asset is converted into stock in trade. Capital asset is converted into stock in trade. It is a transfer. Transfer has been effected
but the capital gain does not arise in the year of conversion. It arises in the previous year in which the converted asset is sold or otherwise transferred. ये भी एक एक्सेप्शन है. ट्रांसफर तो इफेक्ट हो गई जिस साल हमने कन्वर्ट किया, लेकिन कैपिटल गेन चार्जेबल नहीं होता. इट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच कन्वर्टेड एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर. यही केस 45(5) में है, वेयर योर कैपिटल एसेट इज कंपल्सरी एक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, देयर इज अ ट्रांसफर. जिस दिन एक्विजिशन हो गया, देयर इज अ ट्रांसफर. But capital gain does not arise in the year of that transfer. It arises in the previous year where part or full compensation is received. तो इस केस में भी इफेक्ट कैपिटल गेन बाद में लगता है, ट्रांसफर पहले हो जाती है. और इसी तरह अब आया है 45(5)(a) that if there is an individual ratio who enters into a joint development agreement, there is a transfer of a land or building, but capital gain does not arise in the year of transfer. The capital gain will arise in the year in which completion certificate is issued by the competent authority. तो ये सारे केस एक्सेप्शंस के हैं. मैं आपको ये बता रहा हूं, हालांकि जनरल लॉ ये कहता है कैपिटल गेन अराइजेज इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट सेक्शन 45(1)(a, section 45(2), section 45(5) and section 45(5)(a) says capital gain will arise in any subsequent year. In subsequent year, may not arise in the same year. It may arise in the same year if you receive the compensation in the same year, but normally it will arise in a subsequent year. तो ये तो पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट था, the capital gain arises from the transfer of capital asset. ट्रांसफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 47 में दे रखी है, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दे रखी है. एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जनरल चीजें ये भी समझ लीजिए. सेक्शन 2 में भी डेफिनेशंस होती हैं और फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में भी डेफिनेशंस होती है. जैसे अगर आप जाएं, अगर बिजनेस के चैप्टर में, तो वहां डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, definition of written down value, definition of a plant, definition of the term paid, definition of the word speculation. Definition, जो definition section 2 में होती है, वो पूरे इनकम टैक्स एक्ट के लिए है. इट इज फॉर होल इनकम टैक्स एक्ट. लेकिन जो डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर चैप्टर में होती है, कालरा जी, क्योंकि आप बहुत एक्टिव, आप आजकल पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशल बता रहा हूं, जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर में होती है, वो डेफिनेशन सिर्फ उसी चैप्टर के लिए होती है, बाकी किसी चैप्टर में वो लागू नहीं होती. सिमिलरली कुछ डेफिनेशन कैपिटल गेन के चैप्टर में दे रखी है. 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये सिर्फ 45 सेक्शन, ये उसी चैप्टर के लिए. लेकिन ट्रांसफर की डेफिनेशन उसमें नहीं दे रखी, क्योंकि ये वर्ड कहीं और सेक्शन में भी यूज हो सकता है, इसलिए सेक्शन 2 क्लॉज 47 है. अरे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कई जगह आती है, इवन 56(2)(10) में भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आती है. आपको मालूम है कालरा जी, और भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कई जगह आती है, इसलिए उन्होंने वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दे रखी. सो one is general definition which are applicable in the whole income tax act. The another is specific definition which are given under respective chapter. तो मैं आ रहा हूं आपके पास अब डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 क्या कहता है. कैपिटल एसेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, property of any kind held by the assessee, whether connected with his business or not. Any kind of property. Property can be movable or immovable, tangible or intangible, corporeal, incorporeal, any kind of property. Any kind of corporeal, incorporeal, tangible, intangible, सब प्रॉपर्टी मानी जाती है कैपिटल एसेट. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, but does not include any stock in trade. क्योंकि सबको मालूम है, when you transfer a stock in trade, it is a business income and that's why it is not capital gain. तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होती. हाँ, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए सिक्योरिटीज हैं, उसको उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना. उसके लिए तो हमेशा ही कैपिटल एसेट है, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड करे FII के. अदरवाइज हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट ए कैपिटल एसेट. सेकंड इज पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ द एसेसी. पर्सनल इफेक्ट्स मींस
those movable property. Personal is only movable here. Movable property which a person or his family member intimately use for their personal purposes. For their personal purposes. The clothes which I am wearing, the furniture which is lying at my residence, the TV which is in front of me, or the carpet which I have, they're all personal effects which are used by me for my day-to-day purposes. So therefore, they are not capital asset. But it does not include, number one is the item with jewelry. Jewelry is, although most intimately used in India, most intimately used, but it will not be called a personal effect. Jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculpture, work of art. इनको पर्सनल, पहले तो पेंटिंग्स भी पर्सनल इफेक्ट मानी जाती थी क्योंकि हमारे टांगी होती थी अपने घर के आगे, तो घर के अंदर, तो वो कहते थे पर्सनल इफेक्ट है. लेकिन अब नहीं, अब पेंटिंग इज नॉट ए पर्सनल इफेक्ट नाउ. If you transfer any painting or any drawing or any work, archaeological collections or any work of art, there will be a capital gain. वो capital gain होगा. लेकिन personal effect is movable. House in which I live is most intimately used by me. Most intimately. रोज use करते हैं. लेकिन वो personal effect क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा था personal effect means movable property. House is immovable. तो personal effect नहीं है. और फिर वो पूछते हैं आपको, तीसरा है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट ए अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. लोगों ने ये नहीं कहा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वो लिखा एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट ए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर कैपिटल एसेट. आई विल कम टू दैट. और कुछ है गोल्ड बॉन्ड्स, और यहाँ आपका वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई है 2015 और 2019. जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आपने बॉन्ड लिए हैं, पैसे देकर गोल्ड बॉन्ड लिए, वो भी कैपिटल एसेट में नहीं आते. ये छोड़कर हर चीज कैपिटल एसेट में आती है. ये मैंने आपको बता दिया. रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे मैं दोबारा आऊंगा. अब सवाल आया, देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट. ट्रांसफर मींस एनी सेल, एनी एक्सचेंज, एनी relinquishment, extinguishment, compulsory acquisition or conversion of capital asset into stock in trade, zero coupon bond. ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि ट्रांसफर में क्या आना है? सेल. सेल इज ऑलवेज फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ मनी. तो सेल इज ए ट्रांसफर. एक्सचेंज, अब जरा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. विनोद जी पटियाला से बैठे हुए मैं देख रहा हूं. विनोद जी ध्यान से सुनिए. एक्सचेंज बार्टर सिस्टम होता है. इट इज नॉट एक्सचेंज ऑफ मनी, इट इज बार्टर सिस्टम. और बार्टर सिस्टम में दोनों को कैपिटल गेन लगता है. जो एक्सचेंज करता है वो वेंडर भी है और वो वेंडी भी है, और जो एक दूसरा पार्टी है वो भी वेंडर है, वो अपनी एसेट दे रहा है और उसको दूसरी एसेट मिल रही है. तो एक्सचेंज में दोनों चीजें होती हैं. बार्टर सिस्टम, दोनों को टैक्स लगता है. वेंडर को लगता है क्योंकि वेंडर है, मैंने अपनी एसेट को एक्सचेंज किया. मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली में है और आपकी प्रॉपर्टी पटियाला में है, हम एक्सचेंज करना चाहते हैं. हमने एक्सचेंज किया, तो जब एक्सचेंज किया तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, मुझे कैपिटल गेन लगेगा. आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको भी कैपिटल गेन लगेगा. दोनों वेंडर हैं और दोनों वेंडी हैं. हो सकता है मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, बदल ली आपसे, इसके बदले आपने मुझे ये दे दिया, मैंने वो दे दिया. ये कैपिटल एसेट है, तो उस केस में कैपिटल गेन दोनों को लगेगा. दोनों को लगेगा. ये नहीं है एक को लगेगा, दोनों को लगेगा. दोनों वेंडर हैं और दोनों वेंडी हैं. ये बार्टर सिस्टम है. सो एक्सचेंज, relinquishment ऑफ एन एसेट. relinquishment होता है टू गिव अवे, टू सरेंडर, टू गिफ्ट अवे. अगर relinquishment कंसिडरेशन है तो वो ट्रांसफर मान ली जाती है. कंसिडरेशन नहीं है तो सेक्शन 47 में relinquishment को हम कह देते हैं नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. जब मैं गिफ्ट करता हूं तो मैंने relinquish की अपनी एसेट को, आपको दी, लेकिन relinquishment मैंने कंसिडरेशन गिफ्ट में नहीं ली, तो उस केस में वो 47 में जाता है ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. लेकिन अगर मैं कंसिडरेशन ले लेता तो 247 में आ जाता है relinquishment ऑफ एसेट, और वो ट्रांसफर माना जाएगा.
एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स देयरिन। अरे प्रॉपर्टी भगवान ना करे जल गई, डैमेज हो गई, इंश्योरेंस में खत्म हो गई, मेरा उसमें राइट खत्म हो गया, लेकिन मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, ये एक्सटिंग्विशमेंट है, तो भी आपको कैपिटल गेन लगेगा। और कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहता था, आई वॉज नॉट विलिंग, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए जब सेल होती है, म्यूचुअल कंसेंट सेलर और बायर में, लेकिन कंपल्सरी एक्विजिशन में तो म्यूचुअल कंसेंट होती ही नहीं, वो तो मेरा जबरदस्ती ले गए। तो भी लॉ ने कहा ये ट्रांसफर माना जाएगा, और वो ट्रांसफर पे कैपिटल एसेट अगर है तो कैपिटल गेन लगेगा। वो बाद में देंगे कि माफ होगा कि नहीं होगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग। सो दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी एक्विजिशन। अब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मैंने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, अभी कुछ किया तो है ही नहीं, कन्वर्ट ही तो किया है, या ट्रीट कर लिया। मेरी एसेट में थी, मेरे बैलेंस शीट में एसेट है इन्वेस्टमेंट या एसेट है फिक्स्ड एसेट, मैंने उसको उठाकर नीचे ले आया एज स्टॉक इन ट्रेड। तो ये क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड। अरे ऊपर से नीचे ही तो लाया हूं, कन्वर्ट भी कहां किया है, ऊपर से नीचे ले आया, तो भी ट्रांसफर माना जाएगा। बट कैपिटल गेन विल नॉट अराइज इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट, द कैपिटल गेन विल अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच दिस कन्वर्टेड एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर, तब लगता है 45(2) कहता है। तो ये भी कन्वर्जन भी ट्रांसफर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांसफर होना चाहिए और कैपिटल एसेट होनी चाहिए, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल गेन में टैक्स लगता है। लेकिन कब लगता है? मैंने बताया नॉर्मली टैक्स लगता है इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, लेकिन 45(1)(a), 45(2), 45(5) and 45(5)(a where capital gain does not arise in the year of in the year of transfer, it may arise in the subsequent year। जिस साल वो कन्वर्टेड एसेट को बेचेंगे और जिस साल इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा, जिस साल कंपल्सरी एक्विजिशन से पैसा आएगा, या जिस दिन मैंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया और मेरे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, ये सारी केसेस मैंने 45(1) बता दिया। अब मैं 45(1) को बाद में बात करूंगा। एक चीज बताना चाह रहा हूं बिफोर आई, कोई मुझसे पूछता है सर आपने ज्वेलरी बोला है, आपने बुलियन नहीं बोला है, तो क्या बुलियन पे कैपिटल गेन नहीं है, पर्सनल इफेक्ट मानी जाएगी? कैसे मानी जाएगी? अगर गोल्ड कॉइन है तो वो पर्सनली कैसे यूज करेंगे? या कोई सोने की बिस्किट है वो पर्सनली थोड़ी यूज करेंगे। अगर उस गोल्ड कॉइन के ऊपर आपने वो लगाकर डायमंड पर्ल्स लगाकर और गले में पहन लिया तो वो तो ऑर्नामेंट हो जाएगा। व्हाट इज ऑर्नामेंट? ऑर्नामेंट ज्वेलरी, व्हाट इज ज्वेलरी? जरा डेफिनेशन सुनना है विनोद जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्वेलरी की डेफिनेशन गिवन है, ज्वेलरी इंक्लूड्स नंबर 1 ornament made of gold, please note the word ornament, made of gold, silver, platinum or any other valuable asset, whether or not containing any precious or semi precious stone, or whether or not worked up or sewn in a wearing apparel। ये पहली डेफिनेशन है किसकी? ज्वेलरी की। दोबारा बोल रहा हूं, एक एक वर्ड सुनने वाला है। ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स, ध्यान रखना ऑर्नामेंट्स के ऊपर। गोल्ड ये नहीं है, गोल्ड कॉइन नहीं, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल, any other precious metal, whether or not containing any precious stone or semi-precious stone, or whether or not worked up in wearing apparel। अरे किसी जमाने में गोल्ड जरी की साड़ियां आती थी, अब तो गोल्डन जरी है, अब गोल्ड नहीं है उसमें, गोल्डन कलर है, लेकिन किसी जमाने में गोल्ड जरी, प्योर गोल्ड की जरी लगती थी। तो वो जो गोल्ड जरी जो और ना उसमें लग गई कपड़े में, तो वो क्या माना जाता है? कैपिटल एसेट माना जाता है। वर्कड अप और सीव्ड इन ए वेयरिंग अपैरल, वो कैपिटल एसेट माना जाता है। अब दूसरी डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट मींस इंक्लूड्स एनी, सॉरी कैपिटल एसेट कह रहा हूं, ज्वेलरी, ज्वेलरी इंक्लूड्स एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन, whether or not set in any furniture, utensil or any other valuable article or thing, or whether not worked up or sewn in a wearing apparel। ये स्टोन्स की बात कर रहा है,
प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, ये भी आइटम ऑफ ज्वेलरी माने जाते हैं। ये तो लूज भी हैं तो भी माने जाएंगे, ये आइटम ऑफ ज्वेलरी माने जाते हैं। लेकिन गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, गोल्ड बिस्किट ये तो नहीं होता। लेकिन क्या पर्सनल इफेक्ट कर सकते हैं इनको? पर्सनली यूज होते ही नहीं, इसलिए ये कैपिटल गेन इसके ऊपर होएगा। वो पर्सनली यूज हो ही नहीं सकते। फिर कोई पूछता है भगवान की मूर्ति सोने की है, मैं भगवान को पूजा करता हूं और सोने की थाली में पूजा करता हूं, भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूं सोने की थाली में चढ़ाता हूं, या भगवान की जो आरती है वो सोने की है, वो क्या आप यूज कर रहे हैं कि भगवान यूज कर रहा है? यू आर नॉट यूजिंग इट, इट इज गॉड विच इज यूजिंग इट, एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए पर्सनल इफेक्ट बिलोंगिंग टू यू। सामान आपका है, यूज बिलोंग कौन कर रहा है? गॉड यूजेस इट, नॉट यू। तो ये पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाता। सोने की थाली, सोने के डाइटी, सोने की चीजें ये नहीं है। और दूसरा पूछा गया व्हाट अबाउट सिल्वर? सिल्वर भी नहीं माना जाता। सिल्वर यूटेंसिल के बारे में जजमेंट है। सिल्वर यूटेंसिल में कहा है इफ यू आर यूजिंग दैट सिल्वर यूटेंसिल रेगुलरली और ओकेजनली तो वो कैपिटल गेन माना जाएगा। रामानाथ चट्टैयर की जजमेंट है, हाईकोर्ट की जजमेंट है रामानाथ चट्टैयर मद्रास हाईकोर्ट की, कि वो माना जाएगा, वो माना जाएगा। लेकिन कितना? ए रीजनेबल क्वांटिटी, रीजनेबल क्वांटिटी विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास 400 थाली, 200 ग्लास, 300 कटोरी, इतनी इतनी चीजें मेरे पास पर्सनल इफेक्ट है, मेरी सिल्वर की है। वो कहता रुक जाए यार, ये तो बता दे तेरा रिटर्न में कभी कैपिटल गेन गया, उस कैपिटल एसेट माना है इसको? कभी उसमें कैपिटल दिया तूने वेल्थ टैक्स? तेरी अपनी रिटर्न कितने की जाती है, तेरे पास इतने कैसे आ जाएंगे? रीजनेबल क्वांटिटी कैन बी कॉल्ड कैपिटल पर्सनल इफेक्ट। सो चांदी के बर्तन चाहे ओकेजनली यूज करें, सेरेमोनियली यूज करें या डेली यूज करें, एक रीजनेबल क्वांटिटी पर अगर चांदी के बर्तन है तो उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा। लेकिन खाना चांदी के बर्तनों में खाया जाता है, सोने के बर्तनों में नहीं खाया जाता। तो जिस जजमेंट जो आई है वो सिल्वर यूटेंसिल की आई है, वैसे नहीं आई। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा 45(2) पे आइए। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ए ट्रांसफर। जिस दिन आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर लिया या ट्रीट कर लिया, कन्वर्ट पता कैसे करते हैं? एक सोल प्रोप्राइटर है, वो एक एसेट ले आता है अपने बिजनेस में, तो ये स्टॉक इन ट्रेड, उसे कन्वर्जन कहते हैं, उसे कन्वर्जन कहते हैं। लेकिन मेरी एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, फर्म है, कंपनी है, उसके पास ऑलरेडी कैपिटल एसेट थी। वो क्या था? वो उसका फिक्स्ड एसेट थी या इन्वेस्टमेंट था, वो उसको बाद में नीचे ले आया एज इन्वेंट्री, करंट एसेट मान ली। तो ये क्या कन्वर्जन नहीं है? ये ट्रीटमेंट है ऑफ कैपिटल एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड। सो ट्रीटमेंट और कन्वर्जन का डिफरेंस समझ में आ गया कालरा जी? कन्वर्जन जब बाहर से लाया जाता है, ट्रीटमेंट जब वहीं से बैलेंस शीट से शिफ्ट किया जाता है, वो ट्रीटमेंट है। बिकॉज फर्स्ट यू आर ट्रीटिंग एज ए कैपिटल फिक्स्ड एसेट और यू आर ट्रीटिंग एज इन्वेस्टमेंट, नाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एज ए इन्वेंट्री। तो ये ट्रीटमेंट में ही आपका क्या माना जाएगा? ट्रांसफर मान लिया जाएगा, पर कैपिटल गेन नहीं होगा। कैपिटल गेन कब होगा? इन द ईयर इन विच कन्वर्टेड एसेट इज सोल्ड, कन्वर्टेड एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर। लीजिए मेरे पास 1000 शेयर, मेरे पास कई शेयर थे, उसमें 1000 शेयर रिलायंस के थे, मैंने स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट कर लिया। पहले इन्वेस्टमेंट था, अब स्टॉक इन ट्रेड कर लिया। अब रिलायंस के शेयर है 1000 शेयर, तो अब कैपिटल गेन कब लगेगा? जब मैं रिलायंस के शेयर बेचूंगा, उससे पहले नहीं लगेगा, वो तो इन्वेंट्री में पड़े रहेंगे। उस जब मैं बेचूंगा तो 2 गेन होंगे, एक बिजनेस इनकम और एक कैपिटल गेन। कैसे निकालेंगे? कन्वर्जन ट्रांसफर मान लिया गया है, लेकिन कैपिटल गेन विल अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच कन्वर्टेड एसेट इज सोल्ड। मैंने रिलायंस के 1000 शेयर बेच दिए, तो मैं फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा उस रिलायंस की शेयर की। किस दिन? जिस दिन मैंने उसको कन्वर्ट किया था या मैंने ट्रीट किया था, उस डेट में क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी, अरे वो वैल्यू लेकर आज कैपिटल गेन निकालूंगा। कैपिटल गेन आज निकलेगा, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू पुरानी मानी जाएगी, इंडेक्सेशन भी पुरानी डेट तक होगा।
इंडेक्सेशन भी पुरानी डेट तक होगा जब मैंने कन्वर्जन किया था, लेकिन आज कैपिटल गेन निकलेगा। और दूसरी बात, बिजनेस इनकम भी मिलेगी। कौन सी बिजनेस इनकम होगी? सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू विल बी आइदर बिजनेस गेन या बिजनेस लॉस, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इंडेक्स कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट आई सेड कैपिटल गेन। ये 45(2) में लिखा है कि कैपिटल गेन तब लगेगा। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया जैसे कि देखो सर, मैंने 1000 शेयर नहीं बेचे, मैंने तो रिलायंस के 500 शेयर ही बेचे, तो अब क्या करें? 500 शेयर के लिए क्या करूंगा? तो आप 500 शेयर का कैपिटल गेन निकालेंगे, बाकी की बिजनेस इनकम निकालेंगे नहीं, बाकी तो अभी भी इन्वेंट्री में पड़े। तो 500 शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लेकर प्रोपोर्शनेट जो भी आएगी वो लेस कर दीजिए। वो कंसीडरेशन प्राइस 500 शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 500 शेयर। जितने जितने बेचते रहोगे उतना उतना कैपिटल गेन और उतना उतना बिजनेस इनकम होता रहेगा ईच ईयर। आप 10 साल तक रखें तो अरे ज्वेलर्स यही तो करते थे। ज्वेलर का काम क्या? ज्वेलरी ली को जी हमने तो बिजनेस शुरू कर दिया। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। पार्टनरशिप में तो अगर एसेट लाएंगे तो 45(3) लगेगा। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे पे घर ज्वेलरी पड़ी है, मैं उठाकर उसको ले आया, कन्वर्ट कर दिया, कहा स्टॉक इन ट्रेड में ले आया, और वो मैं कभी बेचता ही नहीं, वो हमेशा इन्वेंट्री में ही रहती है। अरे बेच भी दी तो हम क्या करते हैं? दूसरी बना के रख देते हैं, वो तो बिकी ही नहीं सर कभी, तो कैपिटल गेन होगा ही नहीं। अरे वो ज्वेलरी बिकेगी तभी तो कैपिटल गेन होगा ना। वो ज्वेलरी बेचते ही नहीं है, वो तो इन्वेंट्री में ही रहती है। और कोई माल बिक भी गया तो ये बनाकर रख देते कि ये तो वही है। वो तो कन्वर्जन चाह रहे, वो तो आप मेरी बात को समझ गए ना। ये लोग ये भी करते हैं, ज्वेलर्स यही करा करते थे, क्या उसको कन्वर्ट कर दिया ज्वेलरी को घर की, और उनको आज तक बेचा ही नहीं उन्होंने, आज तक बेचते ही नहीं है। वो तो रखा है सर, इन्वेंट्री है, पड़ी हुई है ना, उसको थोड़ा पॉलिश करके हमने स्लो को इसमें रख दिया है, वो नहीं बेचते। वो तो एंटीक पीसेस थोड़ी बिकता है, वो तो मेरी इन्वेंट्री है, तो ट्रांसफर भी नहीं माना जाता। होगा जब बेचूंगा ना, जब तक बेचूंगा नहीं तब तक कुछ होना ही नहीं। तो ये भी एक तरीका किया जाता था 45(2). अब जरा ध्यान से सुन लेना, हालांकि कैपिटल गेन का चैप्टर है लेकिन मैं कुछ और कराने जा रहा हूं, पढ़ी हिला दिया है उसको मैंने, और वो है सेक्शन 28 क्लॉज VIA। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, समझ में नहीं आती इनको क्या करते हैं। मैं कह के थक गया, तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन इनके समझ में नहीं आती। मेरी परसों भी बात हुई है, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, मैं चेंज करवा रहा हूं, लेकिन परसों भी बात हुई है। एक कौन सा लॉ बना दिया कि कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। आपके पास इन्वेंट्री है, आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, तो लॉ पता क्या कहता है 26(6)(a) में कि उसी दिन जिस दिन कन्वर्ट किया उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी बिजनेस इनकम मान लीजिए। फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस इनकम। अरे मर गया मैं तो। रिलायंस के शेयर हैं मेरे पास 1000 रुपए, 1000 शेयर मेरे पास इन्वेंट्री थी, उसकी कीमत 1200 रुपया है। मैंने जब खरीदे थे हो सकता है 300 रुपया हो या 1800 रुपया, अब तो 2000 हो गया, 2100 रुपया हो गया। मैंने इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर लिया कैपिटल एसेट में, ये सोचकर कि कैपिटल एसेट में तो 20% कैपिटल गेन लगता है और उसमें तो 10% लगता है अगर लिस्टेड है। वो पता क्या कर रहा है, जिस दिन कन्वर्ट किया आपको उसी दिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसमें टैक्स दे दीजिए बिजनेस इनकम। वो सीधा टैक्स लग गया बिजनेस इनकम, और उसके बाद वो कॉस्ट आ जाएगी उसकी उस एसेट की, और जब बेचोगे तब कैपिटल गेन लगेगा। अभी तो आपने इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया है तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिजनेस इनकम लगेगी पूरे अमाउंट में। किसी ने मेरे से पूछा सर 1000 शेयर थे, 300 रुपए के थे, सपोज 3 लाख के शेयर थे, वो 3 लाख तो मेरे इन्वेंट्री में थे, अब वो 2100 रुपए के हो गए, 63 लाख के हो गए, तो 63 लाख पे टैक्स दे देंगे। तो सर वो 3 लाख कहां गए जो मेरा स्टॉक था? अरे भाई साहब उसका क्या किया है, ध्यान तो सुन लीजिए। वो 300 रुपए इंटू 1000, और आपने 21 लाख के बेचे हैं, अभी नहीं 21 लाख के कन्वर्ट किए, वो 3 पे 3 लाख, वो आपकी इन्वेंट्री से कम हो जाएगा ना। क्लोजिंग इन स्टॉक में 3 लाख कम हो गए,
तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को तो कम हो गया, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो गया नहीं? जब क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख से कम हुआ तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो गया, एवरीबॉडी इज राइट। और 21 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्टली तो 18 लाख पे दिया, लेकिन दिया तो सही। मर गया मैं तो बेचना तो चाहता ही नहीं था, अभी तो कन्वर्ट ही किया था। यहां तो कुछ भी नहीं है, बिल्डर तो सारे मारे गए। कि सपोज एक बिल्डर ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, उसका इन्वेंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड है। बाद में बिल्डर ने सोचा चलो एक फ्लोर में अपने लिए यूज कर लेता, तो क्या करेगा? अपने लिए यूज करेगा तो कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट, क्योंकि उसके ऊपर उसको डेप्रिसिएशन भी लेनी है। उसी दिन उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी, सॉरी, बिजनेस इनकम मानी जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालकर। मर गया बेचारा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालकर उसको बिजनेस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अरे हो सकता है उसकी लैंड बहुत पुरानी हो, उसकी टोटल कॉस्ट आई हो बिल्डिंग बनाकर उस फ्लैट की, सपोज टोटल कॉस्ट आई है 10 लाख और आज उसकी वैल्यू 3 करोड़ है। उन्होंने तो 3 करोड़ पे बिजनेस इनकम मान लेनी, चाहे आप 10 लाख जो हो। पहले तो जब बेचता तभी प्रॉफिट लेता ना, अभी तो बेचा कुछ नहीं है तो भी आपको लग गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन 3 लाख करोड़ पे मिल जाएगी, लेकिन उसमें लैंड को छोड़कर। लेकिन मेरा तो मर गया, मैं तो उसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने तो उसको ट्रीट कर लिया है, नीचे से उठाकर ऊपर ले आया हूं अपने बिजनेस के लिए। या कल मैं लेटिंग का हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कराना चाहता हूं, तो पता क्या करेंगे? आपने कैपिटल एसेट बना लिया है तो इसके ऊपर टैक्स दो पहले, फिर बिजनेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इन्वेंट्री को बिजनेस थोड़ी होता, फिर तो यहां पर मार देंगे। अरे यार ये क्या करा है आपने? मैंने कहा ये कौन सा लॉ बना दिया? लेकिन 26(6) से मैंने कहा बनाना था तो शेयर के लिए बनाते, कोई शेयर का मेरा बिजनेस है तो मैंने उसको रॉन्गली एसेट में कन्वर्ट कर लिया, मान लिया। लेकिन मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी मेरे पास है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेके मार देंगे मुझे, लेकिन उनके समझ में अभी आई नहीं। चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया। 45(2) का उल्टा होता है 26(6)(a). 26(6)(a) क्लियर हो गया सर सबको? 26(6)(a। अब मैं आ रहा हूं 45(3). बहुत ध्यान से सुनना, ये 90% लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या लिखता है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन काइंड in the business of partnership firm or AOP is regarded as transfer. क्या है? If a partner has contributed any capital asset into the business of the partnership firm, मैं लाया हूं कैपिटल इन काइंड, एसेट इन काइंड, और कैपिटल एसेट अपने बिजनेस में ले आया। लॉ कहता है ये ट्रांसफर माना जाएगा। कैपिटल गेन किसको लगेगा? पार्टनर को लगेगा। लेकिन लॉ ने ये भी लिखा हुआ है that the consideration price shall be the value recorded in the books of account, कि जितनी मैं उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर दूं बुक्स ऑफ अकाउंट पर, वही कंसिडरेशन प्राइस है। अब जरा ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक लैंड थी या मेरे पास एक बिल्डिंग थी, उसकी आज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 करोड़ है। जब मैंने खरीदी थी तो वो 2 लाख की खरीदी थी या 10 लाख की खरीदी थी, लेट्स से। मैं उसको बिजनेस में ले आया तो वो कहता है मेरी मर्जी है, मैं रिकॉर्ड उसको कर देता हूं। 10 लाख की थी, चलो मैं 10 लाख की रिकॉर्ड करना चाहता हूं या 50 लाख की करना चाहता हूं। मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 करोड़ है, मैं 50 की करना चाहता हूं, तो कैपिटल गेन 50 के हिसाब से देना पड़ेगा। 10 का करूंगा तो 10 के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, 56(2)(10) जो कम फर्म है उसके केस में फर्म ने रिसीव करी है प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस द वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके ऊपर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देना पड़ेगा। कभी मत कोशिश करना, कईयों ने कहा जी 45(3) स्पेसिफिक सेक्शन है तो मैं उसको उस प्राइस पे ले आता हूं जो मेरी मर्जी है, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अरे आपकी मर्जी थी जब 56(2)(10) नहीं था। 56(2)(10) में तो मर्जी नहीं रही ना, अब तो सबके लिए हो गया। तो जब फर्म के पास वो एसेट आएगी फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, आपने 10 लाख की चीज 50 लाख में रिकॉर्ड कर दी, उसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है, तो उन्होंने क्या करना है? 3 करोड़ माइनस 50 लाख, 2.5 करोड़ के ऊपर फर्म को टैक्स लगा देना है।
एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसलिए कोशिश मत करना कि 45(3) का बेनिफिट ले लूं, क्योंकि 45(3) में तो लिखा है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कालरा जी समझ रहे हैं? हो सकता है 45(3) में वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हो सकता है 50C में नॉट विद स्टैंडिंग में नहीं लिखा, तो वो नॉन वेस्टेन क्लास नहीं है। 45(3) स्पेसिफिक सेक्शन है, लेकिन फायदा क्या उस स्पेसिफिक सेक्शन का? वेंडर के केस में तो नहीं लगेगा, पार्टनर के केस में, लेकिन फर्म को तो टैक्स लग जाएगा। फर्म को तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लग गया। तो कभी भी अटेम्प्ट मत करना, कभी भी अटेम्प्ट ना करना। कोई प्रॉपर्टी लाना तो फेयर मार्केट वैल्यू से लाना, कोई शेयर लाना तो भी फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि शेयर के लिए भी 50CA आ गया, क्योंकि 50C(2)(10) में तो सब कवर्ड है। 50C(2)(10) में अगर कालरा जी क्या क्या कवर्ड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है, मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, सब कुछ तो कवर्ड है। अगर वो मैं लाया एज बिजनेस में एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मेरा पर्सनल था एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो याद रखिए उस केस में आपको 45(3) में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैल्यू रिकॉर्डेड। लेकिन 50C(2)(10) में इन आइटम की वजह से आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लग जाएगा। और फिर मुझे मत कहना, क्योंकि लोग एक बात करते हैं 45(3) में तो वैल्यू रिकॉर्डेड लिखा है। मान लिया आपकी बात, मैं मान लेता हूं, चलो 50C नहीं लगाऊंगा, 50CA नहीं लगाऊंगा वेंडर के ब्याह, लेकिन वेंडी तो लगाऊंगा। वेंडी के ब्याह में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मैं आपको टैक्स लगा दूंगा 50C(2)(10) में। इसलिए कभी मत करना, कभी मत करना। आगे आगे बढ़ता हूं। अब आया 45(4). 45(4) क्या कहता है? एक फर्म है, एओपी है, और ये फर्म डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के टाइम पर जो कैपिटल एसेट थी, दे डिस्ट्रीब्यूटेड दैट कैपिटल एसेट इन स्पीशी टू द पार्टनर्स। पार्टनर को बांट दी जब डिसॉल्व हुई, या अदरवाइज लिखा है, अदरवाइज में रिटायरमेंट भी आ जाता है। मैंने पार्टनर को एसेट काइंड में दे दी, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा पार्टनर को, सॉरी पार्टनरशिप फर्म को, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा फर्म को। वो कहेंगे ये एज इफ आपने बेची है, या तो आप बेच देते तो भी फर्म को कैपिटल गेन है, अगर पार्टनर ले गया तो भी टैक्स लगेगा अंडर 45(4) at the time of dissolution, or otherwise if any capital asset is distributed in kind to the partners or members of AOP। 45(4) बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रिटायरमेंट में भी अगर कोई कैपिटल गेन एसेट देंगे तो भी लगेगा। हाँ, रिटायरमेंट के टाइम में पैसे दे देंगे, उसकी जो कैपिटल है तब नहीं लगता। जो उसका कैपिटल है 2 करोड़ का, आपने 2 करोड़ रिटायरमेंट पे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई कैपिटल एसेट दे दी तो उसकी मार्केट वैल्यू निकालकर फर्म को पहले टैक्स लगेगा, फर्म को लगेगा। ये 45(4) है, ये ध्यान रखना। अब आया 45(5), कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ। आपकी कोई लैंड बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय लॉ हो गई। अब कंपल्सरी एक्विजिशन में भी मैं आऊंगा, वो वाला रेफ्टलार एक्ट वो बताऊंगा, वो लैंड के टाइम पे बताऊंगा कि वो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, इन लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट 2014, वो बाद में लूंगा। उसको रेफ्टलार एक्ट कहते हैं, वो बाद में लूंगा। अभी तो मैं सिर्फ ले रहा हूं कि लैंड एंड बिल्डिंग आपकी अक्वायर हो गई अंडर एनी लॉ, नोटिफाइड हो गई, और उसके बाद कंपनसेशन गवर्नमेंट से मिला, सपोज वो टैक्सेबल है, तो 45 कहता है कब माना जाएगा ये ट्रांसफर? ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। लेकिन कैपिटल गेन कब लगेगा? व्हेन पार्ट और फुल कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, उस साल कैपिटल गेन लगाएंगे। लेकिन इंडेक्सेशन कब तक करेंगे? जिस साल आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, और कैपिटल गेन निकाल लेंगे। लेकिन रुकिए, जरा ध्यान से सुनिए। अब कई बार यू आर नॉट सेटिस्फाइड, एंड व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंपनसेशन।
मेरे को 3 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिला। मैंने कहा ये तो कम है, मैं कोर्ट में चला गया। कंपनसेशन की एनहांसमेंट हुई, तो जो वो एनहांसमेंट हुई ना, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन लगता है इन द ईयर इन विच दैट कंपनसेशन इज रिसीव्ड। जब भी वो कंपनसेशन रिसीव होगी उस साल लगेगा। लेकिन उस केस में कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, वो तो ऑलरेडी लेस हो चुकी है। कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, पूरा का पूरा कैपिटल गेन लगेगा एनहांस्ड कंपनसेशन पर। एक पॉइंट और सुन लीजिए, एनहांस्ड कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट में मिली है तो जिस साल जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट मिलेगी उतने उतने पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। किसी ने मुझे पूछा कौन सा लगेगा, लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म? मैंने बोला जो ओरिजिनल कैपिटल गेन था जब कंपल्सरी एक्विजिशन हुई थी, अगर वो लॉन्ग था तो ये भी लॉन्ग होगा, वो शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट होगा। ये एनहांस कंपनसेशन की बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरा मेरी तरफ से सुनना, एक सेक्शन 28 लैंड एक्विजिशन एक्ट का है और एक सेक्शन 34 लैंड एक्विजिशन एक्ट का है। ये लोग गलती कर रहे हैं। सेक्शन 28 में लिखा है कि कई बार क्या होता है, आपको कंपनसेशन 3 करोड़ का मिला, आप चले गए कोर्ट में और कोर्ट ने कंपनसेशन 5 करके 2 करोड़ रुपया एनहांस कर दिया। तो 2 करोड़ एनहांस करते कोर्ट इसमें 9% इंटरेस्ट भी देता है अंडर सेक्शन 28। वो इंटरेस्ट जो है पहले हम इसको कंसिडरेशन प्राइस में ले लेते थे, उसके ऊपर कैपिटल गेन लगाते थे, कहते थे ये जो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिला है अंडर सेक्शन 28 ये कंसिडरेशन प्राइस ही है, इसको उसमें जोड़कर कैपिटल गेन का ही टैक्स देते थे। और एक सेक्शन 34 में मिलता है। 34 में क्या होता है, जब पोजीशन ले ली लेकिन पेमेंट नहीं दी और पेमेंट डिले कर दी, वो होता है डिले इन मेकिंग ए पेमेंट। 2 सेक्शन है सेक्शन 28 में लैंड एक्विजिशन में, इसलिए मिलता है कि एनहांस्ड कंपनसेशन जो आपको पहले दी नहीं गई या बढ़ा दी गई तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये तो हम कहते थे पार्ट ऑफ कंसिडरेशन प्राइस है। और दूसरा ऐसा मिलता है मेरी पोजीशन ले रखी है और आपने पैसे नहीं दिए, पैसे लेट दिए, 6 महीने लेट, साल 2 साल 4 साल लेट, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, वो सेक्शन 34 में होता है, उसको हम इंटरेस्ट मानते हैं और वो टैक्सेबल होता था अक्रूवल बेसिस पे। लेकिन अब तो आपको पता है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज IX डाल दिया गया है, रेड विद सेक्शन 145B, रेड विद सेक्शन 224। क्या कहता है कि जो भी इंटरेस्ट आएगा ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन वो अब टैक्सेबल होगा रिसीट बेसिस पर। विनोद जी, रिसीट बेसिस पर इंटरेस्ट, रिसीट बेसिस पर। पहले होता था अक्रूवल बेसिस पर, रमाबाई की जजमेंट थी कि पुराने सालों में ले लो, और 28 में था वो कैपिटल गेन का पार्ट हो जाता था। लेकिन अब ये रिसीट बेसिस पे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 9 में लगेगा और उसको हम देंगे। और सेक्शन 57 में लिखा है इसके ऊपर 50% डिडक्शन मिलेगी इस इंटरेस्ट पर, 50%। 57 में डिडक्शन है, 5629 में इनकम है और 145B में उसका रिसीट बेसिस पे टैक्सेबिलिटी है, रिसीट बेसिस पे टैक्सेबिलिटी। ये क्लियर हो गया? ये है इंटरेस्ट की पोजीशन नाउ। लेकिन अभी भी कई लोग पढ़ा रहे हैं कि 28 और 34, बट 28 तो कैपिटल गेन में जाना चाहिए। वो सर पहले तो जाता था, लेकिन जब से 5629 आया वो जितनी भी पुरानी जजमेंट है उसको हम ओवरराइड कर देंगे, इसको टैक्स करेंगे इन द ईयर ऑफ रिसीट। और कोई कहते नहीं 34 को इधर लेंगे, 28 में वो लेंगे, मैं नहीं मानता। अरे उसमें कैपिटल गेन में लेकर भी तो क्या फायदा होगा सर, वो राइट टू के उसमें तो ठीक है, यहाँ तो 50% डिडक्शन भी तो मिल रही है। वो अलग बात है कि अगर 28 में लो, अगर वो कंसिडरेशन प्राइस एग्जेम्प्ट हो तो फायदा होता है, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है। आइए वापस आते हैं, तो ये हो गया 45। अब 45 में पता क्या लिखा है कि आपने कैपिटल गेन, आपकी लैंड अक्वायर हो गई। अब लैंड अक्वायर होने के बाद भगवान ना करे उसकी डेथ हो गई, तो जो लीगल एयर है ना, ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द फादर। वो पैसा लीगल एयर को मिलेगा और लीगल एयर को ही टैक्स लगेगा, लीगल एयर को टैक्स लगेगा। एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय यू, एनहांस कंपनसेशन रिसीव्ड आफ्टर द डेथ। हाँ, जो डेथ तक आ गई वो तो टैक्सेबल डिजीज के हाथ में होगी,
जो डेथ तक हो गई वो तो डिजीज के हाथ में होनी है। जो टैक्सेबल रिसीट बेसिस पे है और डेथ के बाद आई है तो किसके हाथ में टैक्स होगा? लीगल एयर के हाथ में टैक्स होगा, लीगल एयर के हाथ में टैक्स होगा। लेकिन कौन सा कैपिटल गेन होगा? वही जो ओरिजिनल कैपिटल गेन था। किसका? डिजीज का। डिजीज के हाथ में लॉन्ग था तो ये भी लॉन्ग होगा, डिजीज के हाथ में शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट होगा। अब ये थोड़ी देर में बताऊंगा कि डिजीज चाहे तो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54F 54 वगैरह ले सकता है, 54EC भी ले सकता है। वो जब वहां पर आऊंगा तो बता दूं। बाप मर गया, बाप मरने के बाद उसने अभी एसेट लेनी थी, डेथ हो गई, तो क्या 54 का बेनिफिट या 54B का बेनिफिट या 54EC का बेनिफिट या 54F का बेनिफिट लीगल ईयर ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। He steps into the shoes of the legal the deceased. ये भी ले सकता है। ये थोड़ी देर में बताऊंगा। वहां तो एक और भी नई चीज बताऊंगा, अभी नहीं, जब 54 पे आऊंगा तो बताऊंगा। अभी तो ये बता दिया कंपलसरी एक्विजिशन का जो पेमेंट रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है और जो पेमेंट डेथ के बाद आई तो वो लीगल एयर के हाथ में टैक्स होगी, इन दी हैंड्स ऑफ द लीगल एयर। कौन सा कैपिटल गेन? जो ओरिजिनल कैपिटल गेन लॉन्ग है तो लॉन्ग, शॉर्ट है तो शॉर्ट है। ये मैंने आपको बता दिया। आइए 45(5)(a) में आते हैं। सारी मुसीबत तो यहां आ गई है। इतनी मेरे झगड़ा हुआ है 3 दिन 4 दिन पहले, और वो अब कहते हैं गलती हो गई, अब ठीक कर देंगे। अरे मैंने कहा जो मर गया उसको क्या ठीक करोगे? अभी तो पता नहीं कब करोगे नया लॉ। बजट आएगा तो कर दे। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, बजट आएगा तो कर दोगे, अभी क्या होगा? मैंने कहा अभी अमेंडमेंट आने वाली है, अभी कोई ना कोई अमेंडमेंट बिल आएगा या ऑर्डिनेंस आएगा, मैंने कहा उसमें कर दो। अब उनकी मर्जी है भैया, मैं तो कह ही सकता हूं। मेरे साथ तो रोज लड़ाई होती है। मेरे साथ तो पहले भी 3 दिन पहले भी फोन आया और उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। वो उसका आया चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, मैंने हिला दिया। चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या हुआ है कि अब एक्सेस एप्लीकेशन अगले साल की एप्लीकेशन मान ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है सुब्रोज फाउंडेशन, लेकिन उन्होंने अपने फॉर्म में दे ही नहीं रखा। तो मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, जब सुप्रीम कोर्ट आ गया तो आप इसको अमेंडमेंट क्यों नहीं करते? 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया मेरा कि ये कौन सा है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने आपको 15% पुराना दे रखा है तो आपके पास पैसे कहां से आए एक्सेस एप्लीकेशन करने के लिए? मैंने कहा वो जो 15% जोड़ रखा है वो तो है। हाँ, तो आपने एग्जेम्पशन ले रखी है उसकी। अरे ये क्या बातें करते हैं, इनको समझाना पड़ता है। और मैंने समझा दिया, मान गए वो, मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन इसका भी मैंने बोला ये चेंज होगा। अब मैं नहीं कह सकता इमीडिएटली चेंज होगा, मैं 45(5) पढ़ने जा रहा हूं, या नया बिल आएगा तब चेंज होगा, लेकिन चेंज तो होगा। आइए 45(5) क्या पढ़ते। देखिए क्या प्रॉब्लम थी, मैं आपको बताऊं। ये प्रॉब्लम पंजाब से ही शुरू हुई है। पंजाब की एक जजमेंट आई थी CS एटवाल की। हुआ क्या, हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 47 सब क्लॉज V। सेक्शन 247V कहता है वेयर देयर इज ए पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेयर पोजेशन इज हैंडेड ओवर अगेंस्ट पेमेंट और प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। हम क्या करते थे, एक पावर अटॉर्नी बना लेते थे, एग्रीमेंट कर लेते थे डेवलपर से, लेकिन उसको कभी रजिस्टर नहीं कराते और पोजेशन दे देते थे। वो कहते थे जब पोजेशन दिया, क्योंकि 247 क्लॉज V लग गया तो ये ट्रांसफर है। शुरू तो पहले हुआ था चतुर्भुज द्वारका दास कपाडिया से, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट, वो तो कहता था ये तो ट्रांसफर हो गया। लेकिन बाद में जजमेंट आ गई थी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की, उसमें कह दिया था नहीं, जब तक कंप्लीट पोजेशन नहीं दे दें और कंप्लीट पावर ऑफ ना दे दें तब तक नहीं होता। तो ये हमने मान लिया था। लेकिन हुआ क्या, एक जजमेंट आ गई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की CS एटवाल। हम तो पहले क्या करते थे, पोजेशन दिया कैपिटल गेन लगा लेते थे। कैसे लगाते थे जरा सुनिए, पहले ये समझ लीजिए क्योंकि बाद में नुकसान आएगा। सपोज कीजिए कॉलरा जी मेरे पास 500 मीटर का प्लॉट है, एक बिल्डर आया कि मैं इस पर बिल्डिंग बनाऊंगा और 4 फ्लोर बनाऊंगा, 1 फ्लोर मुझे दे देना और 3 फ्लोर आप रख लेना। मतलब 25% बिल्डर ले रहा है और 75% मुझे दे रहा है। हो सकता है 25% बिल्डर ले रहा है और मुझे कुछ कैश भी दे दे, या बिल्डर आधा ले रहा है आधा मुझे दे रहा है। तो हम क्या करते थे, लैंड की पोजीशन दिखा देते थे और एग्रीमेंट टू सेल कर लेते थे, रजिस्टर नहीं कराते। हम कहते थे हमने क्या बेचा,
हमने 50% लैंड बेची है, 100% लैंड नहीं बेची, 50% लैंड बेची है। 50% तो लैंड मेरी है, और 50% लैंड बेचकर वो जो मेरी 50% लैंड है उस पर वो दो मेरा फ्लैट बनाकर मुझे दे देगा। तो व्हाट आई हैव डन, I have sold 50% level land in consideration of flat to be constructed by the builder on my remaining 50% of land. तो वो जो सुपर स्ट्रक्चर की कॉस्ट आती थी वो कंसिडरेशन प्राइस होती थी। हम तो वो भी नहीं लेते थे, हम तो कहते थे हमने 50% लैंड बेची है तो 50C प्राइस ले लो, 50C की स्टैंप ड्यूटी लेकर कैपिटल गेन निकाल लो, और निकाल देते थे। और उसके बाद जो 2 फ्लोर मुझे मिलते थे हम कहते उसका 54F मिल गया मुझे, क्योंकि लैंड ट्रांसफर करी, 2 घर मिल गए तो 54F हो गया, तो मुझे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता था जब तक कि मुझे कोई कैश ना मिले। ऐसा भी तो होता था, बिल्डिंग है टूटी पुरानी बिल्डिंग हो गई तो हम बिल्डिंग ही ट्रांसफर कर देते थे, आधी बिल्डिंग, पूरी नहीं, पूरी नहीं, क्योंकि उसको 2 फ्लैट देने हैं, 50% अगर उसको देना है तो 50%, उसको 25% देना है तो मैं कहता था 25% ट्रांसफर कर दी बिल्डिंग, अगर 50 देना है तो 50% बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी। क्या कहा, तेरे को 50% बिल्डिंग दे रहे हैं और तू जो मेरी 50% बिल्डिंग को तोड़ेगा उस तोड़कर 2 उसमें फ्लोर बनाकर मुझे दे देगा। यही है ना, मैंने अपनी पोर्शन तो नहीं बेचा है, मैंने अपनी बिल्डिंग का पोर्शन नहीं बेचा है। तो हम क्या करते थे, वो 50% कैपिटल गेन निकाल लेते थे बिल्डिंग ट्रांसफर का, और हम उसकी 50C प्राइस लेकर, सेल प्राइस लेकर कैपिटल गेन निकाला, और उसके बाद 54 का बेनिफिट ले लेते थे कि भाई आधी बिल्डिंग बेची और बाकी बिल्डिंग तोड़कर उसने मेरा नया फ्लैट बना दिया, जी नरसिम्हन की जजमेंट है, तोड़कर भी बनाया जा सकता है, तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाती थी। यही करते रहे हम। लेकिन मैंने इनको कहा कि सर कई लोग क्या होते हैं कि कोई 3 उसको फ्लैट मिल के वो बेचना चाहता है, अब वो आप कहते हो कैपिटल गेन आज दे दो, अभी तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, कैपिटल गेन कहां से दूं? तो वो इसलिए मैंने उनको कहा था कि इसके लिए लॉ बनाओ। ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा लॉ बनाया कि लोगों को हिला दिया है, लोगों को समझ में नहीं आया। सर मैं 45(5)(a) में आ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल 2-2 बार 3-3 बार समझाऊंगा, एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, जरा समझिए। कालरा जी जरा ध्यान देखना क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर 45(1). अरे 45(1) में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग वेयर in case of an individual or HUF there is a transfer of a capital asset being land or building under a specified agreement to develop a housing project, it will be regarded as transfer. सुनिए मैंने क्या कहा है, I have entered into a specified agreement with the builder or developer. ये जरूरी है, entering into a specified agreement with the builder or developer. किस चीज का एग्रीमेंट किया, I am transferring my land or building or both, who am I am an individual or I am HUF. अब उन्होंने क्लियर कर दिया इंडिविजुअल HUF के पास अनलेस वो बिजनेस कर रहा है उसके लिए हमेशा ये कैपिटल एसेट होती है, हमेशा कैपिटल एसेट, अनलेस वो प्रॉपर्टी सेल परचेज का बिजनेस करे वो कैपिटल एसेट, अदरवाइज कैपिटल एसेट। तो मेरी लैंड थी, मेरी बिल्डिंग थी, या दोनों मैंने एंटर कर लिया स्पेसिफाइड एग्रीमेंट विद द बिल्डर और मैंने उसको ट्रांसफर कर दी लैंड और बिल्डिंग। प्लीज नोट द वर्ड ट्रांसफर, ये बहुत गलत किया है, वो नीचे जाके कुछ और लिखते हैं, ऊपर ट्रांसफर कर दी अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। तो पता क्या कहता है, दिस इज ए ट्रांसफर बट कैपिटल गेन शैल नॉट अराइज इन द ईयर ऑफ entering into a specified agreement. The capital gain shall arise in the previous year in which completion certificate, whether for whole or part of the project, is issued by the stamp duty, issued by the competent authority. वो कहता है आपने ट्रांसफर कर दिया, हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पैसे ही नहीं है देने के लिए टैक्स, हम कुछ नहीं कहेंगे, कर दो, लैंड और बिल्डिंग दे दी, बट अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होना चाहिए। पहले तो आप इंडिविजुअल और HUF हो और किसी के लिए नहीं है, बाकियों के लिए कहते हैं वो स्टॉक इन ट्रेड, इंडिविजुअल और HUF यू हैव एंटर्ड इनटू ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। अब स्पेसिफाइड एग्रीमेंट नीचे डिफाइंड है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मींस अ रिटन एग्रीमेंट टू सेल
which is registered with the stamp duty authority. रजिस्टर्ड होना चाहिए विद स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, तब स्पेसिफाइड एग्रीमेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। मैंने पहले कहा हम पहले रजिस्टर तो कराते ही नहीं थे, हम तो एग्रीमेंट कर लेते थे बोगस, या करते या नहीं भी करते थे, ओरल कर लेते थे और करके हम पोजेशन दे देते थे और कैपिटल गेन लगा लेते थे। लेकिन ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट CS अटवाल ने कह दिया रुको, सेक्शन 17 आया था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है जहां आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराते। वो कहता 17 सेक्शन में लिखा था अगर 53A सेक्शन लगाना है तो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है तो 53A लगेगा ही। तो वो जो सेक्शन 247V है जिसमें लिखा है पार्ट परफॉर्मेंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट अंडर 53A, वो कहने लगे एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, हम तो रजिस्टर कराते ही नहीं थे। तो इसलिए CS अटवाल ने मरवा दिया। अब उसने कह दिया ये ट्रांसफर है ही नहीं, अब तो कैपिटल गेन तब लगेगा जब बिल्डिंग बन जाए। और उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आपने उसको दिया बिल्डर को, क्या, क्योंकि आपने बिल्डर से एग्रीमेंट किया, बिल्डर ने मकान बना दिया, आपका मकान उसने बना दिया, आपने 2 फ्लैट उसको दे दिए उसमें से, तो आपको कैपिटल गेन तब लगेगा जब बिल्डर बना दे। अरे यार ये क्या, और आपको कैपिटल गेन लगेगा, बिल्डर को नहीं, क्योंकि बिल्डर को जब आपने दिया पोजीशन, हमने ट्रांसफर माना ही नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं, हम नहीं मानेंगे ट्रांसफर। तो कब मानेंगे, जब बिल्डिंग बन जाएगी, वो मेरे बिहाफ पे बना रहा है और मैं जब उसको वो दूंगा उसका पोजीशन, तभी तो होगा, नहीं तो 53A लगेगा ही नहीं, 53A नहीं लगेगा तो 247VA भी नहीं लगेगा। तो मार दिया था, इसलिए मैंने कहा यहां आ जाओ। अब तो जजमेंट आ गई है कालरा जी, बलबीर सिंह मैनी की जजमेंट, 251 टैक्समैन बलबीर सिंह मैनी की जजमेंट, रंजीता कौर की जजमेंट, 2 बड़ी बड़ी जजमेंट आ गई हैं 398 ITR, उसमें क्लियर कर दिया है अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, 53A माना ही नहीं जाएगा। मर गए सारे जो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं कराते, वो ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। तो फिर आपने तो बिल्डर एग्रीमेंट, और फिर और सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेनामी लॉ के अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 के नीचे एक्सप्लेनेशन डाल दी गई। उस एक्सप्लेनेशन में लिखा है where there is a part performance of the contract under section 53 of the Transfer of Property Act, it will be regarded as a benami transaction unless there is an agreement to sell which is in writing, and it should be registered. Please note the word, it should be registered, and appropriate stamp duty must have been paid on this registered document, and possession is handed over और पेमेंट आ गई। आप बात समझ रहे हैं सर, अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो कालरा जी क्या माना जाएगा, बेनामी लॉ, तो पोजेशन नहीं देना, पोजेशन आप ही की मानी जाएगी क्योंकि 247V नहीं लगेगा। अगर आपने कह दिया पोजेशन दे दिया और एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं कराया तो वैसे ही अलाउड, वो तो वैसे ही अलाउड नहीं है, बेनामी माना जाएगा। तो अब एग्रीमेंट टू सेल सारे रजिस्टर्ड कराते हैं, अगर नहीं कराओगे तो 45(5)A नहीं लगेगा। अगर 45(5)A नहीं लगा इंडिविजुअल HUF के केस में तो क्या लगेगा वो थोड़ी देर में बता। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कैपिटल गेन निकालना कैसे है। जरा ध्यान से सुनते रहना प्लीज, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। क्या कहता है, notwithstanding anything contained under 45(1) where there is a transfer of any capital asset of any land or building or both by an individual HUF under a specified agreement with the developer, then for the purpose of computing capital gain, the capital gain shall arise, capital gain shall be chargeable to income tax in the previous year in which the completion certificate is issued by the competent authority. हम उस साल कैपिटल गेन लगाएंगे जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया। किसको लगाएंगे, मुझे इंडिविजुअल को या HUF को। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, ध्यान से सुनना, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन द कंसिडरेशन प्राइस शैल बी, अब मर गया यहां पर, कंसिडरेशन प्राइस क्या मानी जाएगी, हिज शेयर
his share of land or building or both. The fair market value of his share of both land and building on the date of completion certificate. सुन रहे मैंने क्या कहा? His share. अरे भैया मैंने तो 2 फ्लैट दिए, मैंने तो आधी बिल्डिंग दी थी, आधी तो मेरी है, मैंने बेची कहाँ है? लेकिन आप तो कह रहे नहीं, कंसीडरेशन प्राइस में आपके लैंड की भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे और आपकी बिल्डिंग की भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे. हिज शेयर. अरे आपके 2 फ्लैट जो नए बने हैं उसकी जो लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू करंट ले लेंगे. अरे सर वो तो मेरी लैंड है, आपने बिल्डिंग तोड़ दी, लैंड तो मेरी है. कहता ना, उस लैंड की कंसीडरेशन प्राइस लो प्लस उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लो और तब कैपिटल गेन निकालो. लेकिन क्या है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, एग्जांपल दे रहा हूं. मेरे पास 500 मीटर का प्लॉट था. मैं पहले प्लॉट ले लेता हूं. उस 500 मीटर का प्लॉट मैंने खरीदा था 2001 में 10 लाख का. 2001. आज उसकी कीमत 301 अगर लगा ले तो 3 गुना हो गई, 30 लाख रुपए. ठीक है जी. 500 मीटर का प्लॉट था. वो क्या कह रहा है? आपने बिल्डर एग्रीमेंट कर दिया, हम इसको ट्रांसफर नहीं माने. ट्रांसफर मान लेंगे लेकिन कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे. इंडेक्सेशन तो आज कर देंगे, कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे. कैपिटल गेन कब लगाएंगे? जब आपको 2 फ्लैट मिले, उसके साथ लैंड की कीमत भी ले लो आज की और प्लस फ्लैट की. लैंड की कब की लेनी है? 2020 में मिला, 2021 में मिला, 2022 में मिला, तो 2022 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड और मेरी लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. अरे मैंने तो बेची नहीं है. कहता नहीं, अपनी लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकालो, फिर वो जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ये कंसीडरेशन प्राइस है. माइनस क्या करेंगे? वो जो 500 मीटर का प्लॉट था उसकी इंडेक्स कॉस्ट करके वो माइनस कर पूरे 500 मीटर. हम पहले क्या करते थे? 250 मीटर दिया, 250 मीटर की इंडेक्स कॉस्ट लेते थे, 250 मीटर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेकर कैपिटल गेन निकालते थे. वो कहता ना ना ना, आपके पास 250 मीटर का प्लॉट रह गया, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो आज की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 3 करोड़ है. जब खरीदा था 10 लाख का था, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो. अरे खरीदा था तो तब हुआ, उसकी आज की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो प्लस उसके ऊपर क्या लो? सुपर स्ट्रक्चर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लो, जो 2 फ्लोर उसने बनाए उसकी ले लो. वो दोनों की लेकर फिर इंडेक्स कॉस्ट लेस कर लो. वो जो 10 लाख का प्लॉट खरीदा था उसको इंडेक्स करके कैपिटल गेन निकालो. अब अंदाजा लगाइए, मैं तो मर गया ना. मैंने तो कुछ बेचा ही नहीं था. मैंने तो आधी बिल्डिंग बेची थी, आधी लैंड बेची थी, वो तो बिल्डर ले गया. मैंने तो अपनी आधी लैंड बेची नहीं थी. लेकिन कहता ना, वो भी मानी जाएगी बेची है, जैसे आपने ट्रांसफर कर दी है, और बाकी कंसीडरेशन प्राइस में उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो और वो ले. समझ में आया सर? अभी तक हम क्या करते थे? आधी लैंड बेची, आधी लैंड की इंडेक्स कॉस्ट निकाली और आधी लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकालकर कैपिटल गेन निकाल ली. देखिए ये तो ये कहता है. और फिर क्या कर रहा है? ये बहुत भारी गलती कर दी इन्होंने. वहां लिख दिया ट्रांसफर मान ली जाएगी जब आपने एग्रीमेंट किया, तो इंडेक्स कॉस्ट तो ट्रांसफर वाले दिन करेंगे. मैं कहा ये कौन सी गलती कर दी आपने? ये कौन सा तरीका है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकालूंगा जब मैं, ट्रांसफर पुरानी मानी जाएगी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नई मानी जाएगी. जब मुझे कंप्लीट हुआ तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकलेगी. कहता गलती हो गई. मैंने ये कोई तरीका है गलती होने का? पहले तो मैंने कहा कि आप मेरी वाली पोर्शन की क्यों निकाल रहे हो? मेरे को तो वो निकालो जो मैंने दिया है. वो तो पहले ही नहीं समझ में आ रहा उनका. लेकिन दूसरी और गलती कर दी कि कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा आज, लेकिन इंडेक्स कॉस्ट लेनी पड़ेगी जब मैंने एग्रीमेंट किया. हालांकि स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में लिखा है कि दैट ही हैज मेड अवेलेबल द लैंड और बिल्डिंग. वहां तो मेड अवेलेबल लिख दिया, वहां पर पोजेशन आप लिख दिया मेड अवेलेबल, ऊपर लिख दिया ट्रांसफर. और ट्रांसफर की वजह से इंडेक्सेशन तो होगा जब मेरा एग्रीमेंट हो. कालरा जी जब सेक्शन खोल के देखना, ये हाल है ये हमारे डिपार्टमेंट का. और 3 साल से पीछे पड़ा हुआ हूं, इनके समझ में नहीं आता है. और कहते क्या फर्क पड़ता है? वो तो बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं वो तो करोड़ों रुपए की लैंड खरीदते हैं. मैं कहा उनकी बातें छोड़ो यार, हमने घर के अंदर बनाया और फिर मुझे 54 भी लेना है, 54F भी लेना है. अरे 54F तो उनको देना ही पड़ेगा, ये कैसे नहीं देंगे? क्लियर हो गया? 45(5)A. अब आपने एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं कराया तो कालरा जी क्या होगा मुझे बताइए.
जब रजिस्टर्ड नहीं है तो 247V लगेगा नहीं, पोजेशन दे भी दो 247V लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा। वहां लिखा पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेयर पोजेशन इज हैंडेड ओवर। लेकिन वो कह रहा है एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपने एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर ही नहीं किया, तो ये तो ट्रांसफर है ही नहीं। तो क्या होगा, जब मेरी बिल्डिंग बन जाएगी तब मैं बिल्डर को 2 फ्लैट दूंगा, कंसिडरेशन ऑफ व्हाट ही हैज डन फॉर मी। आप बात समझ रहे हैं? वो तो मर जाएगा बेचारा, वो तो उस वक्त कैपिटल गेन लगेगा और वो कह देंगे क्योंकि आपने फ्लैट दिया है, लैंड पे तो वो ले लेंगे इंडेक्स कॉस्ट, फ्लैट तो नया बना है उसमें तो इंडेक्स कॉस्ट भी नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है? लोग सोचते हैं कि जी ये तो क्या किया, अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं कराओगे तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा जब आपने पोजेशन दे दी, क्योंकि वो 247V लग ही नहीं सकता CS अटवाल की वजह से और फिर बलबीर सिंह मेनी की वजह से और रंजीत कौर की वजह से। ये ध्यान रखना, ये लोग गलती कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे। अब तो सारे बिल्डर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर कर लेते, तो उनको भी डर है कि कल वो भाग जाएगा, मैं तो मालिक ही नहीं, कम से कम एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर हो गया तो मैं मालिक तो बन गया, पोजेशन तो मिल गई। उस वक्त तो पोजेशन नहीं मानी जाती, वो पोजेशन मानी नहीं जाती, वो तो कहते हैं यू हैव अलाउड हिम टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग ऑन योर लैंड, क्योंकि पोजेशन हैंडओवर मानी नहीं जाती है। पहले तो मानी जाती थी, जसबीर सिंह सरकारिया का जजमेंट थी, आपको पता है, उसकी पंजाब में लैंड थी, या उसके बाद कई जजमेंटें आई थी, लेकिन अब तो मानी नहीं जाएगी। अब तो वो कहते हैं रंजीत कौर या रंजीता कौर या बलबीर सिंह मैनी या CS अटवाल ने कह दिया है जब तक एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है वो ट्रांसफर है ही नहीं, और जब ट्रांसफर नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्लियर हो गया सर? मैं आगे चलूं? ये 45(5)A में मैंने टाइम लगाया, आप गलती मत कर देना, क्वेश्चन है तो नोट करके रखना, मैं जरूर जवाब दूंगा। आगे चलूं सर? अब आगे आपका 50C सबको आता है, that if you transfer any land or if the consideration accruing from the transfer of any land and building is less than the stamp duty value, then for the purpose of computing capital gain, the consideration price shall be the stamp duty value assessed, assessable or available by the assessee. तो stamp duty value लेनी पड़ेगी, सबको पता है। हाँ, आपके पास एक 50C2 लिखा है कि आप चाहें तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए आप रेफर कर दें वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए, क्लेम फाइल कर दें, रिटर्न में नहीं, आपको रिटर्न AO को क्लेम लिख के देना पड़ेगा, काइंडली रेफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। लेकिन रुकी, पहले वो तो समझ लीजिए क्या कि मैंने कहा 50C का है, लेकिन अब आपके पास 10% मार्जिन तो मैंने अलाउ करा दिया। पहले 5, 7, 10, 15 कहा था मैंने, 10 तो अलाउ कर दिया। सपोज कीजिए आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ रुपया है, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2.5 करोड़ है, और आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन 2 करोड़ 30 लाख है। एक्चुअल कंसिडरेशन 2 करोड़ 30 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ 50 लाख। हम 2 करोड़ 30 लाख में 10% जोड़ेंगे, 10% जोड़ा तो 23 लाख जुड़ गया, 230 plus 23, 253. Does stamp duty value exceeds 253? Stamp duty value does not exceed 253. तो इस केस में हम एक्चुअल कंसिडरेशन 230 ले सकते हैं, 230 ले सकते हैं, 250 नहीं, 230। लेकिन अगर एक्चुअल कंसिडरेशन 220 है और स्टैम्प ड्यूटी 250 है तो 220 में 10% जोड़ो, 22 लाख, 2 करोड़ 42 लाख, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ 50 लाख है, तो इस केस में आपको 2 करोड़ 50 लेनी पड़ेगी, 2 करोड़ 20 या नहीं ले सकते, 250 लेनी पड़ेगी। समझ में आया? 10% किस में जोड़ना है? एक्चुअल कंसिडरेशन। एक्चुअल कंसिडरेशन में 10% जोड़कर फिर देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है फिर तो एक्चुअल कंसिडरेशन, आपको 10% का कनेक्शन वो मिल गया, बेनिफिट। समझ में आ गई सर? 10% का बेनिफिट ये देखना है, वो करा दिया, और इंतजार करिए 15 तक लाऊंगा, लेकिन अभी तो 10 ही आया है, मान गए थे, अब 15 के लिए कहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, 10% अलाउड। लेकिन सपोज कीजिए आप कहते हैं कि मेरी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 220 ही है, 250 तो गलत है, तो आप रिटर्न भरेंगे। आप कहते हैं रिटर्न में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेता है, जी नहीं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बगैर 220 भी ले लेता है। आप 220 भी डालेंगे, 250 भी डालेंगे, दोनों डालेंगे,
आप डालकर रिटर्न भर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, आप चले जाइए वैल्यूएशन ऑफिसर के लिख के दे दीजिए कि प्लीज रेफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। फिर जो वैल्यूएशन ऑफिसर डिटरमिन करेगा, अगर तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम करेगा तो बाइंडिंग है किसके ऊपर, एओ के पास। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा करेगा तो एओ नहीं ले सकता ज्यादा वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2.5 करोड़ है, आपने 2.20 किया, एओ वैल्यूएशन ऑफिसर ने 2.30 किया तो 2.30 लगेगा। वैल्यूएशन ऑफिसर ने 2.70 कह दिया तो 2.70 नहीं होगा, 2.50 ही होगा। ये तो लॉ क्लियर है। हमारे पे एक और तरीका है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी वैल्यूएशन ऑफिसर, आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। आप अथॉरिटीज के अगेंस्ट चले जाइए, स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील फाइल कर दीजिए। वो अपील फाइल करके कह दिए, देखिए सर ये तो बिल्डिंग बिल्कुल कोने में है, यहाँ तो कुछ और है, यहाँ तो बड़ी वो तो एक ही रेट बना देते सारे एरिया का। ये नहीं देखते छोटी गली है कि बड़ी गली है, कि पीछे शमशान घाट है, कि पीछे क्या है, पीछे झुग्गियां पड़ी हैं, कि पीछे क्या है, वो तो सबकी एक ही वैल्यू बना देते। लेकिन आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाकर सर्वे करा के करा सकते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर, लेकिन आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी के पास भी जा सकते। आप कहेंगे केस तो उसने आज ही कर देगा इनकम टैक्स का, कर दे, कोई बात नहीं, लग जाएगा टैक्स, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी डिसीजन आएगा, चाहे 5 साल बाद, चाहे 7 साल बाद, अगर आप जीत गए और आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम हो गई, तो उस केस में हमारे पे एक सेक्शन है कालरा जी, सेक्शन 115 सब सेक्शन 15, ये कोई देखता ही नहीं है। देखना जरा आज 155 सेक्शन 155 सब सेक्शन 15, सबको पता है रेक्टिफिकेशन का सेक्शन 154 है, आगे कोई बढ़ता ही नहीं। आगे बढ़ो सर, 155 सेक्शन भी है, 155 का कालरा जी सब सेक्शन 15 देखना। मैं आजकल कालरा जी का ज्यादा नाम ले रहा हूं, पता क्यों है, ज्यादा पढ़ते हैं, ये रोज पढ़ने लग गए हैं, रोज लिखने लग गए हैं, तो इसलिए कालरा जी को ज्यादा बता रहा हूं। आप बुरा ना मान लेना कि मैं कालरा जी का ही नाम ले रहा हूं, बाकी क्या नहीं ले रहा। ये नहीं कि आप नहीं पढ़ते, लेकिन जरा उन्होंने पेपर लिखने होते हैं, आर्टिकल लिखने होते हैं, तो उनको जरा कह रहा हूँ, जरा जरा 155-15 पढ़ लेना कालरा जी, और पढ़कर देख लेना कि 4 साल क्या, 6 साल के बाद भी, 8 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी आप रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं, और आपको रिफंड मिलेगा फिर, और पूरा इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये 155-15 है सर, ध्यान से देख लीजिए। तो ये मैंने आपको बोला, अगर कई बार लड़ना है तो आप जा सकते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, और हमेशा एडवांटेज मिल जाता है वहां। आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भी जाते हैं और वहां पर भी हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, तो चले जाइए। नुकसान तो कोई है ही नहीं, नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा तो है तो वैल्यू नहीं मानी जाएगी, कम होगी तो कर देगा, नुकसान तो कोई है ही नहीं सर, कर दीजिए और आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के पास जा सकते हैं। और ये दोनों जा सकते हैं, बायर भी और सेलर भी, क्योंकि वहां 56(2)(10) में भी यही लिखा है। 56(2)(10) में भी तो लग जाएगा ना, अरे इधर वेंडर को टैक्स लगता है, उधर वेंडी को टैक्स लगता है, तो दोनों जा सकते हैं, वेंडर भी जा सकता है, वेंडी। मुश्किल तब पड़ती है वेंडर का कोई और स्टेट हो और उसका कोई और हो वेंडी का, तो वो जाएगा तो करेगा क्या। अरे आपने वैल्यूएशन ऑफिसर के पास दे दिया, वैल्यूएशन ऑफिसर एक जलंधर में बैठा है और मेरा दिल्ली में मेरा है, और मैं अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को कह रहा हूं या दोनों का ज्यूरिडिक्शन अलग अलग है, तो उस केस में दोनों वैल्यूएशन ऑफिसर भी तो डिफरेंस आ सकता है। उसका क्या होगा, वेंडी दे रहा है अपना, वेंडर दे रहा है अपना, वेंडी का वैल्यूएशन ऑफिसर कोई और हो सकता है, मेरा वैल्यूएशन ऑफिसर कोई और सकता है, क्योंकि दोनों असेसिंग ऑफिसर अलग अलग हैं और दोनों असेसिंग ऑफिसर के डीवीओ अलग हो सकते हैं, तो उस केस में भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें भी आ जाती है। और फिर वैल्यूएशन ऑफिसर कौन सी मानी जाएगी, जो मुझे अच्छी लगेगी वही मानूंगा ना मैं, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, जो अच्छी लगेगी माननी पड़ेगी उनको। तो ये भी है सर, वेंडर भी अप्लाई कर दे, वेंडी भी अप्लाई कर दे, और कई बार फायदा हो जाता है। तो क्लियर हो गया मेरा 50C। अब 50CA में भी यही आ गया है, अगर आप शेयर्स हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी के ट्रांसफर करेंगे तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। FME 11UA1 में आपको उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं बेचोगे तो 56(2)(10) पे भी टैक्स लग जाएगा। दोनों तरफ शेयर क्लोजली हेल्ड कंपनी के ट्रांसफर किए तो ट्रांसफर को भी लगेगा और ट्रांसफर भी को लगेगा अगर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू है।
यहाँ पर 50 CA आ चुका है, 50 CA, तो बी केयरफुल, ये भी वही बिल्कुल सेम लाइन है। और यहाँ पर वो नहीं है मार्जिन ऑफ 10%, मार्जिन सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, शेयर के लिए कोई मार्जिन नहीं है। शेयर के तो 11UA1 के हिसाब से आपको बनाना है। हाँ, जब 11UA में जाएंगे तो वहां पर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेंगे, वहां 10% गड़बड़ कर सकते हैं। वहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखा है, तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 10% तो वो ले लीजिए, वहां कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको वैल्यू निकालनी है 50 CA में, फेयर मार्केट वैल्यू। इट इज बेटर फॉर बोथ सेलर एज वेल एज फॉर बायर। तो ये भी मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे टाइम का भी ख्याल रखना है। मेरे पास पता है कई क्वेश्चंस आने हैं, तो मैं सीधा जा रहा हूँ। अब 54, 54B, 54EC, 54F, कोई बीच में रह गया होगा तो आप जो पूछना होगा पूछ लेना। A to Z आ गया, लेकिन मुझे पता है मैंने ABCDFGHIJ कर दिया। कई बार LMNO की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बाकी पे पहुंच जाता। अब मैं आ रहा हूँ 54, 54B, 54D, 54EC, 54F वगैरह वगैरह। उससे पहले आऊंगा सेक्शन 1037। अगर आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, which had been used by the individual or HUF, land belongs to individual HUF, which has been used by the individual HUF for agriculture purposes, for at least a period of 2 years, immediately preceding the year in which it is compulsory acquired. मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। Where an agricultural land belonging to individual HUF is compulsory acquired by the law, compulsorily acquired under any law, then in that case, the capital gain shall be fully exempt if that agricultural land has been used for agricultural purposes for at least a period of 2 years immediately preceding the date of transfer. आज में अगर वो लैंड एग्रीकल्चर 2 साल तक यूज करी है और वो कंपलसरी एक्वायर हो गई, तो जितना भी कंसिडरेशन मिलेगा या एनहांस्ड कंसिडरेशन मिलेगा वो पूरा का पूरा माफ है। ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूं, रूरल की नहीं कर रहा। रूरल तो वैसे ही कैपिटल एसेट नहीं। ये सेक्शन तो ऑलरेडी हमारे पास है 1037, लेकिन अब आपको पता है एक लॉ आ गया है जिसका नाम है रेफ्टलार, राइट, नाम सुनना, राइट टू फेयर कंपनसेशन and transparency in land acquisition or what you call resettlement or reorganization act, rehabilitation or resettlement act। दोबारा पढ़ रहा हूं, ये लॉ का नाम रटाया मैंने आज, क्योंकि मुझे पता था आप पूछेंगे ये रेफ्टलार क्या होता है, तो रटना पड़ गया मुझे आज पहली बार। क्या है? राइट टू fair compensation and transparency in land acquisition or resettlement or rehabilitation or resettlement act 2014। इसमें कह दिया है अगर इस एक्ट के अंडर आपकी कोई लैंड, चाहे वो अर्बन है, चाहे रूरल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे नॉन कमर्शियल है, कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है, अगर अक्वायर हो गई अंडर एनी लॉ, अंडर रेफ्टलार एक्ट, और वो जैसे हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अक्वायर कर, उस केस में सेक्शन लिखा है 96 में ऑफ द रेफ्टलार एक्ट कि वो इनकम टैक्स में पूरी माफ होगी। इनकम टैक्स ने अब उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया है और लिख दिया है कि जो रेफ्टलार एक्ट में माफ होगी वो इनकम टैक्स में भी माफ हो जाए। तो ये लॉ आ चुका है सेक्शन 96 एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें लिखा हुआ है रेफ्टलार एक्ट में कि जो भी लैंड अक्वायर करी गई है अंडर रेफ्टलार एक्ट, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, वो पूरी की पूरी माफ होगी। और ये 2014 के बाद की बात है। और कई जगह तो लिख दिया है कि अगर पुरानी आपकी अक्वायर हुई है, सेक्शन 24 में लिखा है पुरानी अक्वायर हुई है लेकिन उसके पैसे नहीं मिले या पोजेशन उन्होंने नहीं ली है, तो उसमें भी वो पुराना एक्ट खत्म हो जाएगा और रेफ्टलार एक्ट लग जाएगा। सेक्शन 24 पढ़ लेना रेफ्टलार एक्ट का, ये कई जगह काम आएगा। कईयों की लैंड अक्वायर हो गई थी
लेकिन पोजीशन ही नहीं ली, या लैंड अक्वायर हो गई आज तक पैसे ही नहीं दिए, वो भी बच जाएंगे, उनके लिए भी ये पूरा माफ हो जाएगा। सेक्शन 24 पढ़ लेना रेफ्टलार एक्ट का, और उसमें ये माफ कर दिया। तो ये तो मैंने कह दिया, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लिया, क्योंकि आजकल क्या है 75% लैंड तो आपको म्यूचुअल एग्रीमेंट से लेनी पड़ती है, अपने आप लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट नहीं अक्वायर करती, गवर्नमेंट 25% लैंड ही अक्वायर करती है, उससे ज्यादा नहीं करती, या फिर अपने लिए कोई रोड बनानी है, ये बनानी है। लेकिन अगर आपने कहा मुझे 200 एकड़ लैंड चाहिए और मुझे फैक्ट्री लगानी है, गवर्नमेंट के पास जाएं, वो 25% अक्वायर करेगी आपके लिए, 75% आपको किसानों से बात करके लेनी पड़ती है, वो 25 करती है, वो रेफ्टलार एक्ट में आ जाती है 25%, बाकी 75 नहीं आती। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये भी ध्यान रखना कि ये है, तो आपका कंपलसरी एक्विजिशन है तो वैसे माफ है एग्रीकल्चर लैंड का, अगर कंपलसरी एक्विजिशन रेफ्टलार में है तो भी माफ है। अब आइए, अब आ रहे हैं 54 में, जरा लैंग्वेज सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड, मैं आपको बता दूं कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कब होता है। अगर तो शेयर्स बेचे जो लिस्टेड हैं, या यूनिट बेचे लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सबको पता है 12 महीने के बाद होता है, इफ यू होल्ड इट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो 24 मंथ्स के बाद होता है, एम आई राइट, कि 36 मंथ के बाद। लेकिन अब एक और आ गया है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इसको भी 24 मंथ्स के बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। लैंड और बिल्डिंग और बोथ 24 मंथ हो गया, 36 मंथ नहीं है। हाँ, ज्वेलरी वगैरह सबके लिए, गोल्ड वगैरह के लिए 36 मंथ्स, लेकिन लैंड और बिल्डिंग के लिए 24। मैंने क्योंकि 54 में हाउस प्रॉपर्टी करने जा रहा हूं इसलिए बता। आइए सुनिए 54 सेक्शन क्या कहता है। एनी कैपिटल गेन अराइजिंग टू इंडिविजुअल एचयूएफ from the transfer of any long-term capital asset being a residential house which is taxable under section 22 shall be exempt to the extent such capital gain is invested in the purchase of a residential house within 1 year before or 2 years after, or in the construction of a residential house within 3 years after the date of such transfer. यही लॉ है कि आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचें, you transfer a capital asset being a residential house property taxable under section 22. You have transferred that. It should be a long-term capital asset. Long term का मतलब है 24 महीने के बाद बेची, 24 महीने के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म हो, तो ये कैपिटल गेन माफ होगा। कितना? To the extent it is utilized for the purchase of a residential house property within 1 year before or 2 years after, or in the construction of a residential house property within period of 3 years after the date of such transfer. यही कहता है, हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन नीचे ये भी कहता है, you should either purchase the house property on or before the due date of furnishing the return, or deposit the money under the capital gain scheme on or before the due date mentioned under 139(1). वो जमा करा दीजिए कैपिटल गेन स्कीम। ठीक है ना, ये कहता है ना। उसके बाद ये भी तो लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। जो नई प्रॉपर्टी खरीदी वो 3 साल तक बेच नहीं सकते। कालरा जी अगर बेचेंगे तो क्या होगा? बेचेंगे तो सिंघानिया की किताब नहीं बताऊंगा, वो गलत है। बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपने जितने की खरीदी है, shall be reduced by the amount of capital gain which was exempt earlier। उतना कॉस्ट को लेस कर देंगे और नेट कॉस्ट बता देंगे। मैं बताता हूं क्या है। सपोज कीजिए आपने एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बेची, इंडेक्स कॉस्ट 1 करोड़ 20 लाख था, आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म 80 लाख हुआ। आपने पूरा 80 लाख लगा दिया तो पूरा का पूरा माफ, आपने 60 लगाया तो 60 माफ, 80 लगाया तो 80 माफ, आपने 1 करोड़ लगा दिया तो 1 करोड़ माफ, आपने 1.5 करोड़ लगा दिया, सॉरी 1 करोड़ लगा दिया तो 80 लाख माफ, 1.5 करोड़ लगा दिया तो भी तो 80 लाख माफ होगा। मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा बोल रहा हूं। कैपिटल गेन 80 लाख था, आपने 60 इन्वेस्ट किया, 60 माफ 20 टैक्सेबल,
आपने 80 इन्वेस्ट किया, 80 माफ, नथिंग टैक्सेबल। आपने 1 करोड़ 20 लाख लगाया, 80 माफ। आपने 1.5 करोड़ लगाया, 80 माफ। टैक्सेबल तो कुछ होगा ही नहीं। अब आया, आपने इसको बेच दिया 3 साल में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? आपने कितने का खरीदा था? पहले केस में 60 का खरीदा था, 60 का, और माफ कितना कराया था? 60। तो नेट कॉस्ट क्या हुई? 0। अब जितने का बेचोगे पूरा कैपिटल गेन होगा। दूसरी बार आपने 80 लगाया था, और 80 लगाया, और 80 लगाकर कितना माफ कराया था? 80। तो नेट कॉस्ट क्या? 0। तो पूरा कैपिटल गेन हो गया। तीसरी बार 1 करोड़ 20 लगाया था, एग्जेम्पशन 80 की मिली थी, तो नेट कॉस्ट कितनी हो गई? 40 लाख। 40 याद रखना, 40 याद रखना। और अगर 1.5 करोड़ लगाया था तो माफ 80 हुआ था, तो नेट कॉस्ट कितनी हुई? 70 लाख। याद रखना, 40 लाख एंड 70 लाख। क्लियर हो गया? 40 एंड 70। अब मैंने बेच दिया इसको, तो क्या होगा? कौन सा कैपिटल गेन होगा? सर मैंने 3 साल के अंदर बेच दिया कालरा जी, 3 साल के अंदर बेच दिया। तो रुकिए, अगर 2 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और 2 साल से पहले बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने 3 साल के अंदर बेच दिया, बेच दो। मैंने बेचा 1 करोड़ 40 लाख का, पहले केस में मेरा 0 नेट कॉस्ट है, तो पूरा 1 करोड़ 40 लाख मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 2 साल के बाद बेचेंगे। दूसरे बेस में मेरा 80 लाख लगाया था, पूरा माफ था, नेट कॉस्ट 0 थी, 1 करोड़ 40 का बेचा, 1 करोड़ 40 लाख रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तीसरे केस में 40 लाख रुपया मैंने 80 लाख लगाया था, 1 करोड़ 20 था, तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी थी? 40 लाख। इस 40 लाख को इंडेक्स करोगे आप 2 साल का, इस 40 लाख को इंडेक्स करोगे 2 साल का, क्योंकि नेट कॉस्ट को इंडेक्स करिए और फिर कंसीडरेशन प्राइस से लेस कीजिए। एम आई राइट? और तीसरे केस में 70 लाख रुपया कैपिटल गेन, 80 माफ करा के 70 मेरा नेट कॉस्ट थी, तो 70 को इंडेक्स करना पड़ेगा अगर 2 साल के बाद बेचे। और एक और सुनिए, अब दोबारा 54 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद बेचा है। अब दोबारा भी 54 ले सकते हैं कैपिटल गेन से, अब दोबारा भी ले सकते हैं कैपिटल गेन से 54। कैपिटल गेन लगाना है, नेट कॉस्ट नहीं लगाना, कैपिटल गेन लगाना है, दोबारा ले लीजिए। अरे छोड़िए, नहीं लेना तो 50C ले लीजिए, 54 EC, 50 लाख तो वहां भी ले सकते हैं, वहां भी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग है, तो 54 EC भी ले सकते हैं। कालरा जी 54 दोबारा ले सकते हैं, 54 EC भी ले सकते हैं 2 साल बेच के। 2 साल के बाद बेच दीजिए, पहले तो कॉस्ट इंडेक्स होगी, फिर कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म होगा, तो दोबारा 54 ले लीजिए, नहीं तो 54 EC ले लीजिए, वो भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। तो ध्यान सुन रहे हैं, ये 2 साल के बाद बेचना अगर दोबारा बेचना पड़े। हाँ, 2 से कम बेचोगे तो फिर तो बेकार है, फिर तो कोई दोबारा बेनिफिट तो मिलेगा ही। ये बात समझ में आ गई? और 3 साल के बाद बेचोगे फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कॉस्ट भी रिड्यूस नहीं होगी। अगर 3 साल के बाद बेचोगे तो कॉस्ट भी रिड्यूस नहीं होगी ना, फिर तो 3 साल से पहले बेचोगे तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, जो एग्जेम्पशन मिला था, 3 साल के बाद बेचोगे तो एग्जेम्पशन जो मिला था वो भी रिड्यूस नहीं होना। लेकिन 2 और 3 के बीच में बेच दिया तो भी कोई बात नहीं है, कॉस्ट नेट आएगी, लेकिन आप फिर 54 दोबारा ले सकते हैं, आप फिर 54 EC ले सकते हैं। क्लियर हुआ कालरा जी? आइए 54B में आ जाइए। Where there is a capital gain from the transfer of any agricultural land, that capital gain shall be exempt to the extent such capital gain is invested in the purchase of another agricultural land within a period of 2 years from the date of its acquisition. लेकिन जो पुरानी एग्रीकल्चर लैंड बेची है must have been used by you for at least a period of 2 years for agricultural purposes. Where there is a transfer of a urban agricultural land by an individual or HUF which has been used by him or his parents or by the HUF for at least a period of 2 years for agricultural purposes shall be exempt to the extent such capital gain is invested in the purchase of another agricultural land within a period of 2 years from the date of such transfer, provided that the new agricultural land purchase should not be transferred within a period of 3 years. इसमें भी वही बात है, 3 साल से पहले बेच दो, 2 साल के बाद बेच दो, तो भी लॉन्ग टर्म होगा, तो भी दोबारा 54B मिल जाएगा, या फिर 54F भी ले सकते हैं, 54F भी ले सकते हैं, 54 EC भी ले सकते हैं।
अरे आपने एग्रीकल्चर लैंड के द्वारा एग्रीकल्चर लैंड उसको बेच दिया 2 साल के बाद, तो भी तो 54 ले सकते हैं। 54F मतलब एग्रीकल्चर लैंड लेके 54F ले लो, एग्रीकल्चर लैंड लेके 54 EC ले लो, एग्रीकल्चर लैंड लेकर एग्रीकल्चर लैंड दूसरी ले लो, वो भी कर सकते हैं 2 साल के बाद। ये भी तो है 54B में। और एक चीज और बताऊं, मैं आपको पहले बता दूं कि आप कह रहे हैं कि 54 हमें मिलता है। एक ध्यान से सुनना कालरा जी, हमें पता है कैपिटल गेन स्कीम में जमा कराना है। कई तो कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा देते हैं कि अभी हमें टैक्स नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं है। तो एक बार कैपिटल गेन स्कीम में जमा हो गया ना, फिर वो खरीदते ही नहीं है। तो टैक्स कब लगता है? जब 3 साल के बाद पैसा निकलेगा ना, तब टैक्स लगेगा, तब लगेगा। तो 3 साल आप पैसा खा गए, अपने पास रखा, उसको इंटरेस्ट कमाया, आपने कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दो FDR में। कैपिटल गेन स्कीम में 2 अकाउंट है, A अकाउंट और B अकाउंट। आप अभी टैक्स नहीं देना चाहते, मत दो। 3 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ है, 3 करोड़ रुपया कैपिटल गेन स्कीम में रख दिया। अब रख दिया, 3 साल तक हमने मजे लिए, और 3 साल के बाद कहते हैं मैंने तो परचेज नहीं करी। वो कहेगा कैपिटल गेन लो, कहता ले लो। 3 साल के बाद लगेगा, पहले लग ही नहीं सकता। आफ्टर 3 ईयर जब निकालोगे तो कैपिटल गेन दे देना। कई लोग तो इसलिए करते हैं। मैंने अपने ब्रदर को बताया, उसने कैसेट बेची थी, कहता यार यही करूंगा, मैं नहीं दूंगा, पर मैं खरीदूंगा भी नहीं। कहता आजकल प्रॉपर्टी की कीमत का पता नहीं, मैं खरीदूंगा भी नहीं, तो क्या करूंगा, कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दूंगा। और वो भी उसको टाइम मिल गया है, क्योंकि 30 नवंबर तक जमा कराना है। आज तो इस बार बेचा तो 30 नवंबर तक है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है, ड्यू डेट और रिटर्न। ड्यू डेट है कि जमा कराना है, ड्यू डेट रिटर्न ही 30 नवंबर हो गई है, तो आप जमा करा देना। अरे जमा क्या अभी करा दो ना, FDR में करा दो, कैपिटल गेन स्कीम में। लेना होगा निकाल लेना, नहीं लेना होगा तो ऐश करना। इंटरेस्ट तो मिलेगा, जो 6% मिल रहा है, 5.5-6% मिला है कैपिटल गेन स्कीम में, वही जो FDR का इंटरेस्ट है वो ले लो, और उसको कमा, उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा, बाकी जो बचा उसी से टैक्स दे देना। अरे टैक्स लगने के बाद भी तो बचेगा, उसका टैक्स दे देना। तो आपने तो इंटरेस्ट कमा कर दिया, सरकार का पैसा जेब में रखा, और आपने और मजे लिए, और उसके बाद कमाया, और 3 साल के बाद टैक्स दे दिया। इसे कहते हैं डेफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी डेफर कर सकते हैं। और दूसरी एक और बताऊं, जरा ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनना। अगर एक बुजुर्ग आदमी बेच रहा है, तो जिस दिन बेचे फटाफट कैपिटल गेन स्कीम में पैसे जमा करा देना। भगवान ना करे अगर उसका कुछ हो जाए तो क्या होगा। एक 743 सर्कुलर है कि अगर कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दिया और बाद में उसकी डेथ हो जाए तो आप पैसा पूरा निकाल सकते हैं, आपको कोई एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं है, फिर खरीदने की जरूरत ही नहीं। 743/96 का एक 6596 का एक सर्कुलर है, 743 लिख लो। बुजुर्ग को तो बता देना कि पहला काम कर कि कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दे, जा करा दे, उसके बाद तो मर जाइए, फिर चिंता नहीं है, फिर तो मर गया कोई चिंता नहीं है, सारा पैसा माफ है, निकाल लेंगे हम, कोई टैक्स ही नहीं लगना। प्लीज डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम। अगर आपको लग रहा है कि आदमी की डाउट है, वैसे तो डाउट किसी का भी हो सकता है, कोविड के दिन है, कैपिटल गेन में तो करा दो ना यार, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना। जब निकालना निकाल लेना, खरीदना खरीद लेना, लेकिन क्यों घर में पैसे रखे हुए, जमा करा दो। भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल एयर को खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल गेन स्कीम में नहीं जमा कराया और फिर डेथ हो गई, तो लीगल एयर को 54 का बेनिफिट लेना है तो मिलेगा, लेकिन उसको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। फिर तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना। अगर लीगल एयर को बेनिफिट लेना है, ही स्टेप्स इनटू द शूज। लेकिन कैपिटल गेन में जमा कराने के बाद डेथ हुई तो पैसे निकाल लो, कैपिटल गेन में नहीं जमा कराया तो फिर वही काम करना है जो डिजीज ने करना था, या तो खरीदो या कैपिटल गेन में जमा करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये भी ध्यान रखना, मरना तो है सबने, लेकिन ये मत प्रार्थना करते ना मर जा, अब तो पैसे हमारे हो गए, ऐसे नहीं है। बट फिर भी एक प्लानिंग है, और वो प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए। इमीडिएटली पैसे आते ही कैपिटल गेन स्कीम में रख लेने चाहिए। इंटरेस्ट तो आता ही है वहां पर, और कई जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हैं, कई बैंक हैं, कई बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, वो देख लेना, उसमें करा दो। नहीं तो 6% तो मिल ही जाता है यार, वो करा दीजिए पैसे, 5.5-6 के करीब तो है ही है, तो वो जमा करा दीजिए। और जमा कराकर अगर 743 का सर्कुलर लेना है तो ले लीजिए,
वो तो है ही। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कैपिटल गेन स्कीम में जमा कराना। और मैंने ये भी बता दिया 54B 54EC क्या है। अब 54EC सिर्फ एक ही आइटम के लिए है, where there is a transfer of any long term capital asset being land or building or both, immobile property, land or building or both, that capital gain shall be exempt to the extent it is invested in the specified securities within a period of 6 months from the date of its transfer. 6 महीने के अंदर अंदर आप जमा करा दें कैपिटल गेन स्कीम में, मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 लाख, सॉरी सिक्योरिटीज में मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 लाख. You have to deposit into securities, National Highway Authority or Rural Electrification Corporation bond, Power Finance Corporation bond, इनमें जमा करा दीजिए. 50 लाख तक माफ. सर 1 साल में 50 लाख है. आप कहें फरवरी में बेचा तो 50 लाख दोनों साल में होगा, 6 महीने अगले साल भी पड़ते हैं. लेकिन ये अलग बात है, इस साल एक बेचा उसका 50 ले लो, अगले साल एक और बेचा उसका 50 भी ले सकते. वो अलग है, वो अलग है. हाँ, लेकिन 1 साल बेचकर उसका 2 बार 50 नहीं ले सकते. ये कह के कि फरवरी में बेचा है मार्च तक 50 ले लो और मार्च के बाद भी 50 ले लो, वो नहीं अलग. एक ट्रांजैक्शन का 1 साल में 50 है, चाहे वो 1 साल में लो या 2 साल में लो. लेकिन अगली ट्रांजैक्शन को नेक्स्ट ईयर करो तो नेक्स्ट ईयर 50 अलग हो सकता है और नेक्स्ट ईयर और 50 पिछला भी हो सकता है. क्लियर हो गया. ये 54EC. लेकिन अब बॉन्ड की लॉक इन पीरियड 5 साल का है, 5 साल का. और एक सुन लेना, इसके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते. लोन लेंगे तो आपको टैक्स लग जाएगा, डीम्ड इनकम मानी जाएगी. आप डोंट टेक लोन अगेंस्ट दिस 5 ईयर बॉन्ड. लेकिन 5 ईयर बॉन्ड का इंटरेस्ट भी अब कम हो गया है, 5% इंटरेस्ट हो गया है. लेकिन आप बॉन्ड में लगा सकते हैं. 5 ईयर के बॉन्ड में 50 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन आपको मिलेगी. आइए 54F पे आते हैं. Any long-term capital gain arising to an individual HUF from the transfer of any long-term capital asset other than residential house property. Other than residential house, any long-term capital asset other than residential house property shall be exempt. लेकिन यहाँ रुकिए, कितनी exempt होगी? Proportionate to the net consideration price. Net consideration price का proportionate है, या capital gain नहीं. जितनी net consideration price लगाएंगे, 100% net consideration price, 100% exempt capital gain. 70% net consideration price लगाएंगे तो capital gain का 70% exempt होगा. 60 लगाएंगे तो 60 capital gain माफ होगा. क्या होता है? long term capital gain into amount invested divided by the net consideration price. long term capital gain to amount. कालरा जी थक गए हैं, कहना बंद कर यार, बहुत सुन लिया मैंने, अभी खत्म कर रहा हूं सर. So long-term capital gain into amount invested divided by the net consideration price, ये होगा, ये माफ होगा proportionate to the net. लेकिन यहां भी लिखा हुआ है क्या 3 साल तक नया घर बेच नहीं सकते. बेचोगे तो क्या होगा? 2 कैपिटल गेन होंगे. एक तो पुराना कैपिटल गेन जो 54 में माफ किया था, वो इस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा. और दूसरा नया कैपिटल गेन जो नई बिल्डिंग ट्रांसफर की. तो कोई बात नहीं, अगर 2 साल के बाद ट्रांसफर करे, पुराना कैपिटल गेन तो लग जाएगा, लेकिन नया कैपिटल गेन जो है उसका दोबारा आप 54 ले सकते हैं. 54 ले सकते हैं. 54F में 54 ले रहे हैं 2 साल के बाद बेचकर, क्योंकि नया कैपिटल गेन कहां से हुआ है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से हुआ है. 2 साल के बाद हुआ है, तो ले लो 54 या 54EC ले लो उसको. तो ये पॉसिबल है 54F में. अब अलग पॉइंट बता के खत्म करना चाहता हूं. मैंने एग्रीमेंट किया था बिल्डर से कि तू मुझे 3 फ्लैट दे दे, 1 फ्लैट रख ले. अब सवाल आया, अब लॉ बन गया है कि आप 1 रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो. हाँ, 54 में 2 भी आ गए अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर नहीं. If your capital gain does not exceed 2 crore, you can buy 2 houses instead of 1. Otherwise, sell 1, buy 1. But for 54, you can buy 2 houses provided the long-term capital gain under 54 does not exceed 2 crore. And once in lifetime, once in lifetime. बार-बार नहीं, once in lifetime. But suppose कीजिए मैंने ये कहा कि आपको 3 फ्लैट मिले, अब अलाउड है 1 हाउस, तो क्या तीनों फ्लैट 1 हाउस माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? ये बड़ा डिस्प्यूट आ रहा है. अब ये डिस्प्यूट
आनंद बसप्पा की जजमेंट थी, एक आदमी ने एक फ्लैट बेचा था और उन्हें 101 नंबर और 102 नंबर 2 फ्लैट ले लिए थे और दोनों को बीच में से मिला दिया था, तो वो कहता था तो एक ही फ्लैट है, तो उसको तो पूरा माफ मिल गया। आनंद बसप्पा कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट है। फिर एक आदमी ने क्या 101 खरीदा, 201 खरीदा और बीच में से सीढ़ी निकाल दी अंदर से, वो कहता है ये डुप्ले है, ये भी तो एक ही है, तो वो भी मिल गया था। फिर जजमेंट आई एक केजी व्यास की, एक आदमी ने बॉम्बे में घर बेचा और एक बिल्डिंग में 4 फ्लैट ले लिए अलग अलग फ्लोर पे, वो कहता ये तो अलग अलग फ्लोर पे मैं तो नहीं दूंगा, एक ही फ्लैट का दूंगा। तो फिर उसने कहा था कि देखिए सर 4 फ्लैट हैं लेकिन राशन कार्ड एक ही है, गैस कनेक्शन एक ही है मेरे पास, मैं किचन एक ही रखा हुआ है, बाकी तो सोने जाते हैं, फैमिली मेंबर है, तो मुझे दिया जाए। उसको मिल गया था केजी व्यास को 16 ITD। लेकिन उसके बाद जजमेंट आई केजी रुक्मणी अम्मा की, केजीवी रुक्मणी अम्मा की जजमेंट आई कि 3 फ्लैट मिले तो क्या हुआ, वो तीनों फ्लैट में रहती है तो उसके लिए उसको फुल एग्जेम्पशन मिलेगी तीनों की, दे आर पार्ट ऑफ वन हाउस, हालांकि वो इंडिपेंडेंट यूनिट है लेकिन पार्ट ऑफ वन हाउस मिलेगी। फिर दिल्ली की जजमेंट आ गई गीता दुग्गल की, उसने 3 फ्लैट मिले, एक फ्लैट उसने किराए पे दे दिया, 2 फ्लैट अपने पास रखे, उसने कहा ये तो किराए पे दिया है मैं नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो दे आर ऑल पार्ट ऑफ वन हाउस, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो पार्ट ऑफ वन हाउस है, हाउस और ए यूनिट। तो आपके पास हाउस लिया तो क्या हुआ, अगर रिलायंस वाला मुकेश अंबानी 29 मंजिल की बिल्डिंग में रह सकता है तो क्या मैं 3 फ्लैट में नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता भाई साहब, अलाउड है, बट दे शुड बी पार्ट ऑफ द सेम हाउस, दे शुड बी पार्ट ऑफ द सेम हाउस, आपको मिलेगा। तो लीजिए सर मैं यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि बहस बहुत बड़ा, अभी तो कैपिटल गेन निकालना था, टैक्स क्या लगेगा, लिस्टेड सिक्योरिटी होगी तो आपको 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू लेके आप निकाल सकते हैं और 1 लाख का कैपिटल गेन माफ होगा और 10% टैक्स लगेगा, कोई इंडेक्सेशन नहीं होगी। लेकिन उसके लिए तो फिर एक पूरा 7-8 घंटे का सेशन चाहिए, लेकिन जितना मैंने कराना था उतना आपको करा दिया। अब आइए जितने सवाल पूछने हैं आप पूछ लीजिए, जितने सवाल पूछने पूछ लीजिए, द हाउस इज ओपन। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, पहले वो ले लें। लीजिए लीजिए सर, मैं लूं कि अपने आप लेंगे, आप बोलेंगे? मैं बोलता हूँ सर। मैं पता क्यों नहीं बोलता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो इनको नहीं आता इन्होंने जान के छोड़ दिया इसलिए मैं कभी नहीं लेता। आप सर, जो मैं बोलता पूछना हूं। चाहते हैं पूछिए, क्योंकि कम से कम ये तो कोई नहीं कहेगा कि सर इन्होंने वो वाला जान के नहीं लिया, इनको शायद आता नहीं था। ये हो रहा है। सर आप करवा तो A to Z रहे हो, आप A to Z नहीं, आप दोनों लाखों में एक हो, वन एंड अच्छा, ओनली वन। क्योंकि अच्छा, हम चलो। जैसी जीरो आपके साथ लगती है ना तो आगे वैल्यू बनती जाती है। चलिए सर पूछिए, चलिए, ठीक क्वेश्चन है। पूछिए। Whether foreign currency notes are capital assets हाँ जी, or foreign currency note? नोट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, Foreign currency notes are not capital करेंसी इज नॉट ए कैपिटल एसेट, वो तो जजमेंट है। FDR इज नॉट ए कैपिटल एसेट, वो तो एक्सचेंज में जब फ्लक्चुएशन हुआ वो अलग, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां होगा, नहीं तो नहीं। कैपिटल रिसीट, asset. Okay. नो इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। Sir, whether section 194IA is applicable on 45 subsection 3? 45(3) अगर बिल्डिंग लाएंगे तो होगा ना यार, बिल्डिंग नहीं लाएंगे तो क्या होगा। 45 194(1)(a) क्या है, हाउस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है ना, एंड मोर देन 50 लाख, अगर कंसीडर मोर देन 50 लाख है तो होगा चाहे कुछ हो, पर वहां लिखा एक्चुअली पता क्यों कह रहे हैं, मनी वर्ड लिखा है, इसमें मनी नहीं आया, इसमें काइंड आया है, तो क्या 194IA लगेगा। इनका पॉइंट कहने का ये, वो एल सम लिखा है वहां, ये डिस्प्यूटेड पॉइंट आ जाता है क्योंकि सम लिखा है, ये काइंड में है, तो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है। सम का मतलब मनी होता है नॉर्मल। चलिए, Kalra ji का एक क्वेश्चन है, if part completion certificate is received, then taxability will be for the part of full. नो फुल 45(5)(a) की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो तो वहां से ही चल लग गया, उस दिन कैपिटल गेन लग जाएगा, कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। If gold पार्ट is, क्यों लिया, फुल लेना चाहिए था, पार्ट मत लीजिए। सर ये एक और क्वेरी है इसी में, अगर गोल्ड ऑफ प्लेस ऑफ लैंड, इन प्लेस ऑफ लैंड अगर गोल्ड में किया है, क्या चीज है, गोल्ड, हाँ इन प्लेस ऑफ लैंड, हाँ, गोल्ड क्या बेच होगा? के लैंड खरीदी, सर अगर हमने लैंड की एग्जांपल की जगह पे गोल्ड ट्रीट कर दिया, गोल्ड सेल किया है, गोल्ड सेल किया ना, हाँ जी, गोल्ड सेल करके आप 54F ले सकते हैं, 54F की कंडीशन सेटिस्फाई करें, 54 तो ले नहीं सकते,
54 EC ले नहीं सकते, 54B नहीं ले सकते, 45(5)A का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। 45 है तो लैंड बिल्डिंग। सो आप गोल्ड बेचकर 54 कौन सा ले सकते हैं? F। पहले 54 EC भी अलाउड था, अब 54 EC अलाउड नहीं है, ओनली 54 F, प्रोवाइडेड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सोल्ड आफ्टर 3 years। राइट सर, अगर प्रॉपर्टी के मतलब किसी के 4 लीगल हेयर्स हैं, 4 लीगल हेयर्स, और प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स के पास आ गई, कैन दे टेक बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 F बाय परचेजिंग 54? सेपरेट रेजिडेंशियल एक्ट? देखिए ऐसा है, लीगल एयर के पास जब आ जाती है, यू स्टेप इनटू द शूज, दे कैन बिकम को-ओनर, दे कैन बिकम को-ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एक ही प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी को-ओनर, बिकॉज यू आर नॉट, you are stepping into shoes of the deceased. A deceased was allowed to buy only one property. You are stepping into the shoes of deceased. Deceased was allowed to buy only one property. But you can buy one property with 4 names, co-owners. कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि you are not, आप step into shoes कर रहे हो। Step into shoes का मतलब है जो वो कर सकता था वो आप कर सकते। अब बात समझ, जो वो कर सकता था वो आप कर सकते। राइट वो घर खरीद सकता था, आप भी खरीद सकते हो। वो 2 खरीद सकता था, आप 2 खरीद सकते हो, कैपिटल गेन 2 से ज्यादा, लेकिन 4 नहीं। जी नहीं, जी नहीं। सर, एक अगर 54 F की एग्जम्पशन मिलेगी अगर प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे खरीदी है तो? अपने जी नाम नहीं। पे नहीं? प्रॉपर्टी के नाम सिर्फ वाइफ के नाम की जजमेंट है, कमल बहाल की, रविंदर कुमार अरोड़ा की। और आपके यहाँ गुरनाम सिंह की जजमेंट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, वो कहता है बच्चे के नाम नहीं मिलेगी। अगर जॉइंट नेम पे खरीद ली, मतलब अपना भी? पहले नेम जिसका है, जिसके पैसे उसको मिलेगी। अगर उसके नाम पे कोई प्रोपोर्शन शेयर बना तो उस पे नहीं मिलेगी। आपने किया 25% उसका, 75% मेरा, तो 75 वाले पे मिलेगी, 25 में नहीं मिलेगी। सर, एक अदर देन कैपिटल गेन एक क्वेरी आई है, will 234C interest be levied for deferment of advance tax payment if check was tendered? 234 C, C इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। देखिए एडवांस टैक्स के बारे में कैपिटल गेन और लॉटरी में, कैपिटल गेन में लिखा हुआ है कि अगर कैपिटल गेन से पहले जितनी इंस्टॉलमेंटें निकल चुकी हैं, उस इंस्टॉलमेंट में आपने पता ही नहीं था आपको कैपिटल गेन होगा, तो उसके लिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर जब कैपिटल आपका हो गया तो उस वक्त कितना परसेंट था, सपोज आपका पहला 15% निकल गया, दूसरा कितना निकल गया, 30% निकल गया, 45 निकल गया। अब आपका कैपिटल गेन नवंबर में हो गया, नवंबर में हो गया, तो आपने नवंबर में, दिसंबर में कितना अलाउड, 75% है। 75। अब 75% में 0 है, आपने नहीं दिया, तो अब कैपिटल गेन जितना बनता है उसके ऊपर टैक्स बनता है, एडवांस टैक्स दे दो, तो 234C नहीं लगेगा इसको। सर, क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट। वो कह रहे हैं जी कि मैंने चेक दे दिया 15 जून को, हाँ, ये कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं है, अदर देन कैपिटल गेन है। चेक दे दिया, 15 जून को मैंने एडवांस टैक्स का चेक दे दिया, एडवांस फिर क्या टैक्स हुआ, का, वो कैश माना जाता है। लेकिन वो 16 चेक जून इज को ऑनर, इट क्रेडिट इज हुआ। ट्रीटेड एज द डेट इज प्रेजेंटेड। राइट सर। ये लॉ है। और आजकल चेक से कहाँ हो रहा है यार, आजकल तो उसी अकाउंट में कर देते हैं लोग, 0 अकाउंट में ऑनलाइन कर रहे हैं। आप पता नहीं ये चेक वाला सिस्टम अब है डायरेक्ट टैक्स में सर, वो है कोई? आईटीओ हो जाता है सर, आईटीओ के नाम का चेक बना के वो ट्रांसफर हो जाती है। चलिए, तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, Can we gift or transfer in blood relation of house property which was purchased for claiming exemption before 3 years? सर when you give to blood relation, when you give to your relative, blood relation क्यों कहते हो relative, it is not a transfer। 47 में it is not regarded as transfer। वो तो कहता है you can't transfer within a period of 3 years। आपने ट्रांसफर का किया, आप तो की नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके यहाँ पंजाब में तो बहुत आसान काम है, 2000 रुपये में ट्रांसफर हो जाती है। आपके यहाँ तो स्टैंप ड्यूटी लगती ही नहीं है, तो आप पहले खरीद लो फिर कर दे रहना, मना कौन कर रहा है? यही तरीका है, पहले खरीद लो, बाप बेटे को लाना है, बेटे को ले आना 2000 में, और उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि इट इज नॉट ए ट्रांसफर। ट्रांसफर तब मानी जाती है जब कि उसमें सेल एक्सचेंज पर, लेकिन उन्होंने कह दिया 47 में गिफ्ट इज नॉट ए ट्रांसफर, बात खत्म हो। सर, गुरलीन जी की कोई क्वेरी है? गुरलीन जी, आपकी क्वेरी क्या है जी? हाँ बोलिए गुलीन जी।
से पूछ लेना। ये क्या बात हुई भैया? घर की मुर्गी दाल आवाज आ रही है? बराबर। आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, आप क्वेरी पूछो। ये क्या सर, बोल रहे हैं? कालरा जी से पूछ लेना। आज बोलो बोलो सर, गुरलीन जी बोलो। गुरलीन जी वीडियो भी चला गया, आवाज भी चली गई। एनी अदर क्वेरी मेंबर्स? सॉरी सर, भाई ये डिस्कनेक्ट क्या हो गया करे था। यार? हाँ जी बोलिए। सर, कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में जो आपने रेफर एक्ट बताया है, उसमें जो एनहांस कंपनसेशन में इंटरेस्ट आता है वो भी उसमें इंक्लूड होगा? वो भी माफ कर रखा है वहां पर उन्होंने। वो सेक्शन 96 में पढ़ो ऑफ द रेफरल एक्ट, रेड विद सेक्शन 36, रेड विद मतलब- सेक्शन 46। 46 में तो लिखा है ये माना ही नहीं जाएगा, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, बाकी जगह माना गया ठीक है सर। मिलेगा। और एक सेक्शन 24 जरूर पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी सर, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू हो सर, गया थैंक जी? यू वेरी मच जी। चलो शशि जी ओवर टू यू सर। फिर तो ठीक टाइम पे हो गया। Thank you so much, sir, and thanks to Krish, sir. We are your proud students, sir. You are a great inspiration for us. I hope you keep showering your blessings on all of us. And now I invite our Vice Chairperson, CA Sonia ji, to give closing remarks. Thank you, Shashi ji. A very good evening to all. I feel immense privilege by proposing a vote of thanks to CA Dr. Girish Ahuja ji, a man of professional wisdom, infinite achievements, a great personality, and above all, a name that reckon respect and regard only. So you are a true blessing for the profession. You possess an aura that spread a dash of enthusiasm in here. I must appreciate that you not only share intellectual knowledge, but also boost our spirit to keep on raising our bar of knowledge too. The completeness of topic along with dedication to explain to other is a dual quality sir possess. And I also would like to extend my gratitude and big thanks to CA Sanjay Agarwal ji, Avinash ji for their presence, and thanks to all my professional colleagues for their active participation and turning in large number. Thank you all. Thank you all. Please take care. All Thank the you best. sir, Please take and care. we would Thank like you, to sir. recognize the presence of CA Asha Jain, chairperson Hisar branch. Welcome you ma'am. अच्छा अच्छा, वो तो मैंने देना है लेक्चर उनको भी। सर वो कल है आपका लेक्चर, वो आज ही हाँ, आपका कल है। लेक्चर सुनने के लिए आई हुई है। हम तो सुधी सर मैडम कलकत्ते कल जाओ, लेक्चर क्या है, किसके ऊपर है? वो बेनामी लॉ पे है। आशा जी यस सर। ओके ओके। सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ पकड़ के फ्लाइट कलकत्ते जाओ। अभी कलकत्ते का है, अभी है, अभी थोड़ी देर में कलकत्ते का है। नमस्कार गिरीश जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। वो उन्होंने दिखा दिया कि कल मैं तो आपको देखूंगी तो ये है मेरी शक्ल, देख लो। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर सर। थैंक यू Take care, सर, all the best. थैंक यू जी। थैंक यू।